Directorate of Distance and Continuing Education, Utkal University. So in this lecture, we are trying to focus on different social issues that persist in India, and till date we have covered 9 issues, and we are also expecting to cover many more issues in future. So today with us, Mr. Dharmendra Patel will be talking on HIV and AIDS in India and the role of social worker. Now, I request Dr. Renuka Kumar, the academic consultant, Directorate of Distance and Continuing Education, Utkal University, to introduce our speaker and to continue the series. Thank you. Over to you, madam. Thank you, Pradeep sir. Thank you so much. A very good evening to all of you. I'm Dr. Renuka Kumar, Academic Consultant, Department of Social Work, Directorate of Distance and Continuing Education, Utkal University, Odisha. I welcome you all to the Gyanalok Saturday Lecture Series on social development issues and role of development professionals, jointly organized by Gyanalok Trust and Department of Social Work, Directorate of Distance and Continuing Education, Utkal University, Odisha. Today we have with us an eminent speaker, Mr. Dharmendra Patel. Mr. Patel is currently working as a State Program Specialist, Sati Project, New Delhi. Mr. Dharmendra Patel is a passionate development professional with over 2 decades of professional experience. After become from South Gujarat University, Mr. Patel did his Master of Social Work from Vinayak Mission University, Salem, to get exposure of field-based professional development work. After getting the MSW degree, Mr. Patel got associated with different renowned organizations like Sati, Alliance, TEAS, etc., under different projects funded by Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, International Labour Organization, Reliance Foundation, etc. His basic work focus is on HIV/AIDS, TB, prisoners correction, women and child issues. During his work, Mr. Patel has worked under nationally well-known projects like Svetna, Vihan and Hazira project and proven his competency as a master trainer in the field of HIV/AIDS. Mr. Patel possesses the skill of training, monitoring and evaluation, counseling, program implementation, documentation, networking and advocacy. Out of his vast knowledge and experience on prevalence and issues of HIV/AIDS, Mr. Patel will deliver today on Introduction to HIV/AIDS and Role of Social Worker. On behalf of Gyanalok Trust, Department of Social Work DDC, Utkal University, and all participants present in today's lecture, I welcome our speaker, Mr. Dharmendra Patel, and request to address the audience. Over to you, sir. Thank you, Renuka Kumarji, and thank you, Pradeepji, to calling me for this session. And it is my proud and it is my privilege also to get this chance to interact with your community. My voice is totally audible properly. Can you make little louder? Okay. Okay. So I think I also put this mic near to my mouth. Okay. Now it's audible. Yeah, you are audible. Okay. Just Okay. yes. Okay. So thank you all of you to give me this chance. So I will go with my PPT. My basic details already shared with you in my flyer also, as well as Renuka Kumarji has also elaborate my detail very well. So again, as a social worker and as a front worker for the HIV/AIDS topic, it is very important that every social worker has to be know about this, because when Gandhiji has started the social work, it's the aim that
social worker is not for table and chair and one cabin. They have to go unto the last people of village, of the urban and rural. So this is the real social work, and we think that the global issues like Pradeep ji had said that we covered the major topic. So it is also important that we have to look such kind of issues like HIV and AIDS also. So during my discussion, I will use Hindi and English both the language, because I think that we have to interact with common people who don't know about English in field. We have to also interact with them in Hindi. So I think dual language is, I think, comfortable all of you. If there is any question, then please put down in chat box. So Pradeep ji will be coordinate, and at the end of the session when we'll Sir, be actually, discuss. what usually we do, Yeah. first you finish your presentation. After that, we will have a discussion session. In that session, they can directly put question to you. Okay, good. It is good. But if during the session, if someone participant have a They can question at write that it. time, yeah, they will be write in chat box, and we will be compile it at the end of the session. So we can start our. I will share my screen. I will share my PPT. Okay. So. So it's visible. The screen is visible right now. PPT. Yeah, it is visible. Okay, and it is full screen now. I think it is full screen. Okay. So आज हम जो बात करेंगे HIV एड्स और सोशल वर्कर्स के रोल के बारे में. सो बेसिकली वी विल स्टार्टेड विथ HIV एड्स बेसिक, एंड कुछ उसकी हिस्ट्री है, कुछ उसके एस्पेक्ट्स है जो हमें जानने जरूरी है, क्योंकि वी थिंक दैट टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में अभी तक लोग इतने खुल के बात नहीं करते, या फिर ओनली कम इन स्टडी एंड जस्ट ओनली रिसर्च रिलेटेड, एंड व्हेन सच काइंड ऑफ इशू विल बी हैपन in media or in some kind of bigger issue, then only discuss the topic. But as a human being, as a हमें हर एक लोगों को ये जानना जरूरी, बिकॉज इट्स अटैक ओनली इन ह्यूमन बीइंग. एक इंसान के अंदर ही ये बीमारी होती है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है. और इट इज वेरी कॉमन नाउ डेज, एंड एवरीवन, कोई भी पीपल हो, इट इज नॉट सिलेक्टेड स्टेट और सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्टेड कंट्रीज आर हियर, बट जहाँ पे भी यूनिवर्सल ये इशू है कि कोई भी इंसान है वहाँ पे ये अपना प्रभाव दिखाता है. सो वी हैव टू नो अबाउट दिस. Gradually when we see lots of services and lots of effort of government as well as public approach nowadays, ये HIV एड्स को हम बहुत सारे पोर्शन को हम थोड़े कंट्रोल कर पाए हैं, कि इस पे जो भी गंभीरता थी, जो सीवियरनेस थी, वो उसको हम कंट्रोल कर पाए हैं. So we will start with some basic information. ये कुछ इंफॉर्मेशन एज अ हिस्ट्री कहीं पे दिखाई गई है. इट मीन्स नॉट इट कि यही सब फाइनल है, लेकिन बहुत सारे मीथ्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, सो मेनी एस्पेक्ट्स previously moving around the community, moving around the peoples. But कुछ है जो गवर्नमेंट ने निकाल के रखे हैं कि भाई हाँ, ये एक बेसिक तथ्य है, बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको हम मान के आगे चलेंगे. एक कॉमन मिथ बहुत सारा, इससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि HIV केम फ्रॉम द मंकी, यानी कि चिंपांजी समवेयर. तो ये बहुत थोड़ी
मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, मिस कॉन्सेप्ट वाली बात है, बिकॉज इट्स नेम सोन्स दैट ह्यूमन being related name, it's not surviving in any creatures of the universe. So it's only surviving in human body. So it is very common understanding we have to create first of all that HIV is only affected to human being, no any creatures of the universe. So ओके, सो बेसिक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए मुझे थोड़ा इतना बोलना है कि यहाँ पे स्लाइड से आपके साथ सबके साथ शेयर हो जाएगी, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन मैं एडिशनली ऐड ऑन करूंगा कि फॉरेन कंट्रीज में जब ये डिसीज पहले देखा गया तो सबसे पहले ऐसी कम्युनिटीज में देखा गया जो हिप्पी लाइफ जीते थे, यानी कि दे डोंट हैव अ फिक्स रेसिडेंस और फिक्स लाइफ कल्चर, they are just moving when they are getting a food and shelter. So such kind of community is specifically gender based also, like this is specific group for female, specific group for male, and they are living such kind of lifestyle. So when the first disease was seen in the gay community, we can say the person who have a same-sex relationship, उनमें ऐसा एक न्यूमोनिया या फ्लू जैसा देखा गया, जो इन्फेक्टेड होते ही कुछ दिनों में वो इंसान बहुत सीवियर बीमारी में चला जाता है और वेरी सडनली वो उसका डेथ हो जाता था। तो साइंटिस्ट वो टाइम पे इतना कंसिडर नहीं कर रहे थे, बिकॉज ये केसेस बहुत कम देखे जा रहे थे या कुछ कुछ एरिया में देखे जा रहे थे। लेकिन ये सेम पैटर्न दूसरी जगह पे भी जब देखी गई और बड़ी तादाद में जब आने लगे, तब लोगों ने उस पर देखना शुरू किया, कंसिडर करना शुरू किया। तब पाया गया कि ये कुछ ऐसा वायरस है जहाँ पे ये इंसान के अंदर इसकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करके बहुत जल्दी उसको डेथ की ओर ले जाता है। सो इसको देख के हमने यहाँ पे कुछ उसके नाम शुरुआत में दिए गए। जैसे मैं कोरोना के बहुत सारे एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा कि व्हेन कोरोना स्टार्टेड इन सोसाइटी, तो शुरुआत में हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ से क्या है क्या नहीं। तो शुरुआत में जो भी नाम आते गए उन्होंने देते गए, और फाइनल जो कोविड का C-19 या फिर जो भी है वो इसके स्पेसिफिक नाम दिए गए। सेम वे HIV का भी जब इनोग्रेशन हुआ, जब उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, तब हमें पता ही नहीं चला था कि क्या है क्या नहीं। साइंटिस्ट बहुत सारे अलग अलग नाम से उसको बुलाते थे, बट व्हेन दे आर फाइनली सीन कि ये कुछ ऐसा वायरस है जिसको हमने HIV का नाम दिया है और ओनली ह्यूमन बीइंग में आइडेंटिफाई होता है। सो व्हेन वी गोइंग विद द डेफिनेशन और वी कैन से एलोब्रेशन ऑफ द वर्ड दैट ह्यूमन इज फर्स्ट, दैट ये खुद एक दिखाता है कि ये ओनली ह्यूमन में रहने वाला एक वायरस है जो तो इसकी इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, उसको कहीं ना कहीं डिफेक्ट करके उसको वीक बनाने की कोशिश करता है, ताकि अदर और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बॉडी में आए और हमें एड्स कंडीशन तक जाए। एक ऐसा वायरस है जो बहुत अ, बहुत सॉफ्ट है, यू कैन सी है, वेरी 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 सॉफ्ट है, बट इतना ही सीवियर है, इतना ही रिस्की है। क्योंकि जब इसके बारे में साइंटिस्ट सोचते हैं, बात करते हैं, तो आज की डेट में इसे क्योर करने के लिए कोई हमारे पास इलाज नहीं है। वी डोंट हैव एनी वैक्सीन और एनी मेडिसिन और एनी एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट थेरेपी जिससे ये संपूर्णतः बॉडी में से निकल जाए और हमें HIV फ्री लाइफ मिले। तो इसकी वजह से आज भी इस वायरस को बोला जाता है इट्स अ जीनियस वायरस। वाई? बिकॉज ऑफ इसके पीछे वो उसका जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मायने रखता है। जैसे कि हम अभी यहाँ पे 50 लोग हैं, एवरी वन आर ह्यूमन बींग, ओके, बट हमारे हर एक के पैटर्न अलग अलग है, लाइक आवर फिंगरप्रिंट, आवर रेटिना, है ना, आवर जीन, जेनेटिक्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट, आवर फेस लुकिंग इज डिफरेंट। It shows that we are human beings, same creatures, but also we have own identity. Same way HIV is also working in उसकी जनरेशन में काम करता है कि वो हर एक के बॉडी में रहेगा, लेकिन अपना रूप रंग अलग बदल के रहता है। अभी कोई
मेडिसिन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई होती है तो वो एक कॉमनली इम्प्लीमेंटेड होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए अलग अलग इनोवेशंस किए जाए। इसके चलते हुए ये वायरस पे कंट्रोल करना या फिर इसको 100% क्योर करना अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए ग्लोबल लेवल पे उसको यूनिवर्सल प्रॉब्लम में रखा गया है। इसके ऊपर ग्लोबली वर्क किया जाता है और जहाँ जहाँ पे ह्यूमन बींग है, जहाँ जहाँ पे भी उसके सीवियर या माइनर इफेक्ट्स है, वहाँ पे इसके लिए काम किया जा रहा है। और यही एक रीजन है कि इसके ऊपर हम अभी तक मतलब विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं और बहुत सारे इश्यूज इसमें आते हैं। अब तक ऐसा भी नहीं है कि इसमें रिसर्च नहीं हो रहे हैं। वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस एंड इसकी मेडिसिन के लिए, बट अभी हम लोग इस पे कंट्रोल कर सके हैं, इसको हम प्योरली मतलब क्योर कर पाए, ऐसा हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सेम वे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, उसका एड्स जिसे हमें बोलते हैं, उसको फाइनली एक कॉमन एग्जांपल के रूप में दिखाऊंगा तो HIV इज अ स्टार्टिंग स्टेप, मतलब जो आप सीढ़ी चढ़ते हो पहला जो स्टेप होता है वो HIV है, जहाँ पे इंसान को इन्फेक्शन लगता है। एड्स इज द लास्ट कंडीशन वेयर सो मेनी काइंड ऑफ डिसीज, यानी कि मल्टीपल डिसीज आर सोन इन ह्यूमन बॉडी। और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिलता है तो एड्स कन्वर्टेड इन डेथ, यानी कि इंसान की इम्यून सिस्टम इतनी डाउन हो जाती है कि लोग डेथ की ओर चले जाते हैं। तो सिंपली हम समझे तो एड्स की कंडीशंस ऐसी है, यानी कि जहाँ पे मल्टीपल डिसीज आइडेंटिफाई होते हैं और जिसकी ट्रीटमेंट करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो टाइम पे नहीं होती है तो एड्स के हिसाब से लोगों की डेथ हो जाती है। कुछ कुछ बातें हम इसके साथ साथ करंट की भी बातें करते जाएंगे। मैं ये बहुत मतलब कहते हुए बहुत खुश हूँ इसीलिए कि एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्यों? 2010 ऑनवर्ड्स, वी कैन से 2008, 9 और 10 ऑनवर्ड्स लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो गई, काउंसलिंग मिलना शुरू हो गया, एक अच्छा एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो गया। इसके चलते हुए जो HIV की वजह से, सॉरी एड्स की वजह से जो डेथ होने का जो रेशियो था वो दिन ब दिन कम होता गया। लोगों को टाइमली ट्रीटमेंट मिलना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे, बट एड्स के कारण होने वाली जो डेथ है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। सो बेसिकली एड्स एंड HIV का मैंने जो साइड में पिक्चर्स भी रखा है, एड्स का वायरस लैब में साइंटिस्ट इसको इस तरह से दिखाते हैं, अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं जिसको वो बॉडी में हमारे काम करता है। आई हैव सम वीडियोस आल्सो, आई विल बी शेयर टू प्रदीप जी एंड दे विल शेयर यू इन योर ग्रुप। सो जब एड्स की बात करें तो एड्स इज द फाइनल स्टेज टू डिजीज caused by infection with the type of virus called HIV, यानी कि HIV एक ऐसे वायरस है जो एड्स की ओर हमें ले जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल पिक्चरिटिकल रखने की कोशिश की है कि इम्यून सिस्टम कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। तो सबसे पहले जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस आता है तो हमारा जो वाइट सेल होता है, यानी कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, वो उसको आइडेंटिफाई कर दिए कि भाई who are you, मतलब you are supporting to this body or you are destroying this body। अगर वो आइडेंटिफाई होता है कि नहीं you are someone else, तो एंटर नहीं कर सकते, तो वाइट जो सेल होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम विल फाइट विद द जो भी वायरस या बैक्टीरियाज आते हैं उनके अगेंस्ट। अगर वो सपोर्टिव है तो उनको एंटर होने देते हैं। इफ दे आर हार्मफुल टू अवर बॉडी और आवर लाइफ थ्रेटनिंग, देन इट विल बी फाइटेड बाय वाइट सेल। बट HIV का वायरस क्या है? वो इस तरह से आता है कि जस्ट लाइक अपना रूप रंग इतना चेंज करके आता है कि वो हमारे सपोर्टिव जैसा दिखता है। मैं कॉमनली एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई बाहर से टेररिस्ट इंडिया में आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो एक कॉमन इंडियन बन के आएगा कि मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो बॉर्डर पे क्या करेंगे? नहीं, ये तो आम इंसान है, कॉमन है, आने दो उसको।
फिर वो अंदर आके अगर कोई तबाही मचाता है तो हम उसको पहचानने के लिए असमर्थ होते हैं। सेम वे यहाँ पे हमारे HIV का जो वायरस है वो बॉडी में इस तरह से आता है कि हमारी इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। उसका जो रूप रंग है, उसका जो चेहरा है, उसका जो जेनेटिक है, वो सब इस तरह से चेंज करके आता है, रिसेप्टर ऐसे बनाता है, तो इसीलिए यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे आके हमारे ही इम्यून सिस्टम के जो वाइट सेल होते हैं उसका मटेरियल यूज करके वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस विल बी स्टार्टेड इन बॉडी व्हेन द व्हेन द इन्फेक्शन इज गोइंग टू ह्यूमन बॉडी। जब इंसान में इन्फेक्शन चलता है तब ये आगे जाके फिर वायरस को बढ़ावा देता है। तो जितना वायरस कंटेंट बॉडी में होगा उसके ऊपर उसकी सीवियरिटी डिसाइड की जाती है। यानी कि यहाँ पे एक मेडिकल रिपोर्ट आता है जिसका वायरल लोड बोलते हैं। अगर कोई इंसान के अंदर HIV का वायरस एंटर हुआ है तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि विद इन 3 मंथ वो इतनी क्वांटिटी में दिख जाता है कि वो हम 10 ml ब्लड में से 1 ml ब्लड का वन ब्लड ड्रॉप हम लेते हैं तो उसके अंदर कुछ कंटेंट, कुछ क्वांटिटी ऑफ वायरस आइडेंटिफाई होती है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा HIV के एंटीबॉडीज आइडेंटिफिकेशन करना, ये HIV का टेस्टिंग के एक दायरे में आता है। बट इम्यून सिस्टम, हमें समझना है कि इम्यून सिस्टम को HIV का वायरस इफेक्ट करता है और HIV का जो भी वायरस है वो हमारी ही बॉडी पार्ट को यूज करके, हमारे ही बॉडी के मटेरियल को यूज करके मल्टीप्लिकेशन करता है। सो HIV का लाइफ साइकिल बहुत साइंटिफिकली है, उसको समझना इट्स क्वाइट बिग टास्क, तो हमें उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। बट डेफिनेटली यू कैन सी इन सम सोशल मीडिया ऑल्सो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ये वीडियोस मिल जाएंगे। बट एक समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया है। सो स्टेजेस ऑफ HIV की अब बात करें, कोई भी इंसान कहीं पे कोई इंसान एक्सपोजर होता है विद HIV इन्फेक्टेड पीपल्स, यानी कि जिसमें पहले से HIV का इन्फेक्शन है, उसके साथ कहीं ना कहीं एक्सपोजर होता है। तो पहला होता है प्राइमरी स्टेज, यानी कि जहाँ पे इंसान को नॉर्मल फ्लूज होते हैं, यानी कि या कोई भी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें वो कहीं ना कहीं मेडिकल सपोर्ट के लिए जाता है। लाइक मुझे अगर डायरिया लग गया, या फिर मुझे फीवर आ रहा है, या फिर मुझे फ्लू हो रहा है, या फिर आई हैव सम स्किन रेसिस और फंगल इन्फेक्शन इन माय माउथ और थ्रोट्स और एनी पर्सनल पार्ट्स। सो कहीं ना कहीं हम जब इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हमें सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी HIV की कोज हो सकते हैं। इट इज नॉट फुल एंड फाइनल दैट HIV ही होगा, लेकिन ये HIV के लिए सस्पेक्टेड सिम्टम्स या डिसीज माने जाते हैं जब ये सीवियर रूप में होते हैं। जब नॉर्मल होते हैं तो विद इन सम डेज वो क्योर होते हैं, यानी कि जैसे कि फीवर आ रहा है, इसमें आई विल टेक अ पैरासीटामोल, तो विद इन वीक या विद इन डेज आई विल बी रिकवर्ड। बट ये सीवियर होने का मतलब कि कंटिन्यू होना, रैपिडली होना, रेगुलरली होना, बार बार होना, थोड़े दिन होना, थोड़े दिन के बाद वापस ठीक हो जाना, ये सब इंडिकेट करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रही है। तो यहाँ पे 6 यानी कि 3 मंथ्स की जो बात हम कर रहे हैं, 2.5 या 3 मंथ की, ये हमारा एक विंडो पीरियड हम बोलते हैं कि जहाँ पे HIV का वायरस अपनी पॉपुलेशन बॉडी में बढ़ा रहा है। कहीं पे कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि उसमें अगर इन्फेक्शन लग भी गया है तो इट विल बी शोन आफ्टर सो मेनी डेज, मंथ और ईयर्स ऑल्सो। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनको इन्फेक्शन लगा है बाय मदर टू चाइल्ड, यानी कि जब वो पैदा हुए थे तब इन्फेक्शन लगा था, बट आइडेंटिफिकेशन उसका 21 ईयर में हुआ, यानी कि आफ्टर एज ऑफ 21 दे आर आइडेंटिफाइड एज HIV पॉजिटिव। सो ये भी कुछ जो हमें दिखने को मिलता है, लेकिन कॉमनली देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे सिम्टम्स हमें दिखते हैं, अदर देन ओनली जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कि वो इम्यून सिस्टम उनकी कैसी है। इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्टेड अदर पर्सन। अगर मैं आज कहीं पे अनप्रोटेक्टेड, कहीं पे मेरा सेक्स होता है और कहीं पे मुझे HIV का इन्फेक्शन लगता है, तो आई विल बी अ ब्रिज फॉर ट्रांसफर द HIV इन्फेक्शन फ्रॉम मी टू अनदर पीपल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक पर्सन को ये लगता है कि आई एम ऑन रिस्क, तो उनको पहले अपना टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि HIV का इन्फेक्शन कहीं और दूसरे के लिए ट्रांसफर ना हो जाए। अब दूसरा एक स्टेज आता है कि एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि ये जो है
ये कई बार मैंने अभी बोला जो 3 to 10 years तो यहाँ लिखा है एज अ गाइडलाइन, बट हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, बहुत कम, ऑल ओवर पॉपुलेशन में देखें तो बहुत कम हो सकते हैं, बट ये मोर देन ऐसे 3 to 10 years में भी ये दिखते हैं जहाँ पे कोई भी सिम्टम्स नहीं है टाइम। क्योंकि एचआईवी का वायरस मैंने अगेन बोला जीनियस है, उसमें से जैसे कि हम 10 दोस्त फ्रेंड है, उसमें से एक फ्रेंड ऐसा होगा जो बहुत लेजी होगा, मतलब कोई बोलेगा तभी करेगा या फिर मन करेगा तब करेगा। कुछ कुछ एचआईवी वायरस ऐसे लेजी होते हैं, यानी कि बॉडी में आने के बाद अपने आप मतलब साइलेंट कर देते हैं, बस आराम से पड़े रहो, हमें कोई निकालेगा नहीं। और फिर जब उसका मूड होता है, जब मन करता है, तब अपनी पॉपुलेशन बनाने के लिए लाइफ साइकिल शुरू करता है। तो वो जो पीरियड है वहाँ पे आप कितना भी टेस्ट करो, कितना भी आप रिपोर्ट करो, तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक फेज में नहीं है या फिर मल्टीप्लिकेशन उसका शुरू ही नहीं हुआ। जब वायरल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है तब आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका जो भी ब्लड सैंपल लिया जाता है वहाँ पे वी शुड बी नॉट आइडेंटिफाई वो एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव। तो इसकी चलते हुए हमें बहुत लो लेवल पे उसकी क्वांटिटी आइडेंटिफाई होती है। एचआईवी की एंटीबॉडीज जो होती है वो डिटेक्टेड होता है हमारे ब्लड से। सो एचआईवी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई थ्रू आवर ब्लड टेस्ट। किसी को देख के, समझ के, जान के, या फिर कुछ भी हिस्ट्री के बेस पे वी कांट जज कि ही इज एचआईवी पॉजिटिव और नॉट। So, but definitely HIV infected person can infected with another also, because वहाँ पे हमें पता नहीं है कि कहाँ पे कितना उनका सिवियरिटी है, या फिर जो इन्फेक्शन का इफेक्टिवनेस है वो कितना है। सिम्टोमेटिक केसेस में मैंने देखा वो बहुत माइल्ड भी होते हैं, है ना। इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, या फिर कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि बॉडी में कुछ होता है जो बाहर दिख नहीं रहा है, यानी कि अपर अपर आउटर बॉडी पे नहीं है, लेकिन इनर साइड ऑफ द बॉडी कहीं पे ब्रेन लेवल का, हार्ट या किडनी या लीवर, या कहीं पे हमारे जो फेफड़े होते हैं, या फिर हमारे जो भी हड्डियां रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे भी कभी कभी इन्फेक्टेड होता है। और जो इमरजेंसी होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की, और बहुत सीवियर हो सकती है तब, जैसे ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को कहीं ना कहीं ये हार्म करता है। जनरली एच आई वी इज नॉट स्पेसिफिक, ये इंडिविजुअली एक कोई ऐसा रीजन नहीं है जो ह्यूमन लाइफ पर थ्रेट करे, लेकिन एच आई वी आने के बाद वो गेटवे ओपन होते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, जिसको हम बहुत माइनर भी बोलते हैं, यानी कि सीवियर अगर डायरिया भी होता है तो कोई एच आई वी इन्फेक्शन पर्सन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बिकॉज वो सीवियर होता है और वो कंटिन्यू होने की वजह से उसका डेथ होने के तक भी चांसेस होते हैं। Commonly अभी देखा जाए तो tuberculosis is very common disease for HIV positive people. In context of general people, there is a 10 times more chances of infections of TB to HIV positive people. इसीलिए HIV और TB को को इन्फेक्शंस बोला जाता है। और यहाँ सिम्टोमेटिक केसेस की जब बात आ रही है तो यहाँ पे टीबी को हमें हमेशा HIV के साथ जोड़ के रखे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी टीबी के साथ HIV का और HIV के साथ टीबी का टेस्ट कंपलसरी करके आगे चल रही है, ताकि दोनों डिसीज जो है उस पर कंट्रोल ला सके। तो एड्स की कंडीशन वाला जो 4th स्टेज है, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस। ये यहाँ पे CD4 काउंट जो लिखा है वो इम्यून सिस्टम को काउंट करने का हमारा एक मेजरमेंट है, एक टेस्ट है, जहाँ पे बॉडी में कितनी इम्यून सिस्टम है उसको काउंट किया जाता है। ये क्राइटेरिया अर्लियर था 2070 ऑनवर्ड्स बिफोर, बट राइट नाउ द क्राइटेरिया इज रिमूव बिकॉज ऑफ वहाँ पे टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है। टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी क्या है, ये हम आगे की ART की स्लाइड लाएंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एड्स की कंडीशंस में अगेन बोलूंगा कि आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स, बट 2010 तक कहीं ना कहीं केसेस ऐसे सुने जाते थे, मैंने फिजिकली देखे नहीं बट सुने जाते थे। बट 2010 ऑनवर्ड्स शायद ही कहीं मैंने सुना होगा कि HIV पर्सन की एड्स की वजह से डेथ हो गई। अर्लियर वो केसेस ऐसे थे कि जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी, लोग बहुत जल्दी इम्यून सिस्टम दवा देते थे, हमारी सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं थी ताकि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट दे पाए। लोग प्राइवेट से कुछ खरीद के खाते थे, आयुर्वेदिक पे जाते थे, होम्योपैथिक नेचुरोपैथी पे जाते थे, लेकिन फिर भी ये वायरस उनको जीतने नहीं देता था। एंड दैट्स द रीजन कि एड्स के लिए लोगों का बहुत
डर बैठ रखा था कि जिसको HIV होता है या एड्स होता है तो वो इंसान एज लाइक कैंसर वो आगे नहीं जी पाएगा, ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में कॉमनली आ जाती थी। उसका रीजन था कि हमारे एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट के अप्रोचेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक कर देते हैं कि भाई हाँ HIV है दैट मीन्स ही इज अ गुड कैरेक्टर नॉट बैड कैरेक्टर। तो बहुत सारी बातें इसमें कनेक्टेड हो जाती है, इसीलिए लोगों का धारणा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये डिसीज को बहुत हमें कहीं ना कहीं देखी जाती है। ये कुछ साइंटिफिकली मैंने खाली इसीलिए रखा है कि हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए। जब HIV इन्फेक्शन हमें लगता है, यू कैन सी एज अ रेड लाइन, तो वायरल कहीं ना कहीं एकदम अपर होता है। और वायरस जैसे जैसे बढ़ता करता है उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग डिसीज होते हैं, कौन से कितने CD4 होते हैं वहाँ पे, कौन से एक्यूट फेज है, क्रॉनिक फेज है या फिर एड्स का फेज है जहाँ पे ये डिसीज लगते हैं। ये अलग अलग डिसीज है जहाँ पे हर्पीस है, काकपोसिस है या फिर गोनोरिया है जिसको हम STD STIs बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो डेफिनेटली हियर। सो कुछ डिसीज के बारे में हम आगे भी दिखेंगे कि ये कौन कौन से डिसीज हैं जो कॉमनली HIV पॉजिटिव पीपल्स को देखे जाते हैं। सो बेसिकली कितने टाइम पीरियड में कितने CD4 होंगे और कौन से फेज में कौन कौन से डिजीज होंगे उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं बताना चाहता था। सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की बात करें तो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं और पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये कॉमनली इन्फेक्शंस हमें देखे गए हैं। मैं अगेन TB और हर्पीस के बारे में ज़्यादा कहना चाहूँगा कि ये बहुत कैंडिडियाज ऑल्सो जो फंगल इन्फेक्शंस हैं और क्रिप्टो भी देखा जाता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे TB की बात करें तो लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ TB विल बी क्रिएटेड, मतलब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। TB कैन इन्फेक्टेड अवर एनी पार्ट ऑफ बॉडी एक्सपेक्टेड ऑफ हेयर एंड नेल। हमारे जो मृत कोशिकाएं हैं यानी कि हमारे डेड सेल है उसको ही खाली TB इफेक्ट नहीं करता, अदरवाइज ब्लड से लेके बोन, स्किन, हमारे जो भी ऑर्गन्स है वो सबको हमारा जो TB से हमारा हार्म रहता है यानी कि इन्फेक्शन लग सकता है। जनरली पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB विल बी शोन इन पब्लिकली, बट सबसे ज़्यादा सीवियरिटी हम देखें या फिर जो ज़्यादा देखा जाता है वो पल्मोनरी TB है, यानी कि जो फेफड़े का TB होता है, श्वास का TB होता है, वो ज़्यादातर देखा जाता है। बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB में भी इतनी ही गंभीरता है और ज़्यादातर देर आप मानोगे नहीं लेकिन द फैक्ट्स ये कहते हैं HIV की मतलब एड्स की वजह से जितने लोग नहीं मरते उससे कई ज्यादा लोग TB से मरते हैं, वो आर द HIV इन्फेक्टेड पीपल्स। तो HIV पॉजिटिव पीपल्स के लिए TB इन्फेक्शन और डेथ अलार्मिंग है। अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं, डॉट्स नहीं लेते हैं या फिर उसके जो स्पेसिफिक कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये उनको डेथ की ओर कनेक्टेड करता है। ये यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन इन्फेक्शंस के विजुअल्स रखे हैं। इस तरह के इन्फेक्शंस बॉडी पार्ट्स HIV पॉजिटिव पीपल्स को देखने को मिलते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस अगेन मैं बोलूंगा ये HIV की वजह से जो गेटवे खुला है, यानी कि द इम्यून सिस्टम इज डाउन एंड सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन विल बी एंटर्ड इन आवर बॉडी। ये अगेन फंगल्स हैं, कहीं ना कहीं पैरासाइट, बैक्टीरियल या वायरल भी हो सकते हैं। जनरली उसको ट्रीट किया जाता है, अगर टाइमली आइडेंटिफाई होते हैं तो ये सभी इन्फेक्शंस को हम ट्रीट कर सकते हैं। सो राइट नाउ देर इज अ हेलो प्रदीप जी, आई एम ऑडिबल मैसेज? Yes, sir. Yes, yes, you are ओके audible. Yeah, ओके you are ओके audible. ओके ओके, थैंक यू। That is absolutely audible. या सो यहाँ पे ये डिसीज को ट्रीट करने के लिए हर एक सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के सिविल हॉस्पिटल में STD सेंटर है, यानी कि जिसको हम कॉमनली एक नाम दिया गया है सुरक्षा क्लिनिक। सुरक्षा क्लिनिक हैव सच काइंड ऑफ मेडिसिन हु आर वेरी इफेक्टेड। अगर कोई पर्सन को पर्सनल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, ही कैन नॉट एबल टू से इन देयर फैमिली और पेरेंट्स और फ्रेंड्स, बट ही इज फेसिंग द इश्यू। वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, ये जो हमारे पर्सनल पार्ट को इफेक्ट करते हैं। टाइमली अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती है तो ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और आगे जाके सर्जिकल भी करना पड़ता है। बट ये जो डिसीज यहाँ पे हमने दिखाए गए हैं वो ट्रीटेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है एंड एनी वन कैन गो विदाउट एनी हेजिटेशन फॉर सच काइंड ऑफ एनी इन्फेक्शन। टाइप्स ऑफ HIV की बात करें तो कॉमनली यहाँ पे हमें दो टाइप्स यहाँ पे देखा गया है। HIV 2 इज मोस्ट कॉमनली देखा गया है
वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड इंडिया। HIV-1 जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि जो ज्यादातर देखा गया है HIV-1, यानी कि जिसको HIV-1 है उसको मतलब बोले जा रहे हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी, बहुत ज्यादा केसेस देखे जाते हैं। HIV-2 और HIV-1 में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। HIV-2 कुछ ऐसी जीन्स है उनके कि वो बॉडी में आने के बाद वो ज्यादा उत्पात नहीं मचाते, यानी कि दे आर नॉट मच सीरियस, मतलब गिविंग अ वेरी डेंजर सिचुएशन इन आवर बॉडी। यानी कि वो आते हैं बॉडी में पड़े रहते हैं और बहुत सालों के बाद, कभी कभी तो आइडेंटिफाई भी नहीं होता है, बट बहुत सालों के बाद पता चलता है कि हाँ उसका HIV है और टाइप 2 है। टाइप 2 होने की एक दूसरा एक स्पेशलिटी ये है कि इस वो बॉडी में आने के बाद उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ ही इज नॉट डैमेजिंग एट ऑल ऑफ योर बॉडी। बट वो जब चाहेगा तब आगे बढ़ेगा, यानी कि जब वो मन करेगा कि भाई हाँ 20-25 साल के बाद हाँ मुझे अभी अपनी आइडेंटिटी दिखानी है, प्रेजेंस दिखानी है, तब वो अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करेगा। HIV-2 की जिसके बॉडी में होता है, ही और शी कैन ऑल्सो बी एबल टू ट्रांसफर द डिसीज टू अनदर पीपल। इसका मतलब ये नहीं कि HIV-2 है तो हम इन्फेक्शन स्प्रेड करने की सिचुएशन में नहीं है, दे कैन ऑल्सो बी। So definitely they have to be tested and they have to be identified as a positive but HIV-2, है ना। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है HIV-1 और 2 के बारे में। HIV-1 डेफिनेटली मैंने जैसे बोला वो आम ज्यादातर देखे जाने वाले टाइप में से हैं, बहुत जल्दी दिख जाता है बॉडी में, वेरी सुन वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस इन आवर बॉडी बाय द ब्लड टेस्ट, और उसके जो भी सिम्टम्स है वो बहुत जल्दी से हमें पता चल जाते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे, HIV-1 और HIV-2। और HIV-1 कॉमनली वी कैन से ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, और HIV-2 जो है ये कुछ पार्ट में ही देखा जाता है, सब जगह पे ये नहीं देखा जा रहा है। इन इंडिया वी कैन से वेरी फ्यू पीपल, मैं अगेन बोलूंगा कि 2000 या 5000 से भी ज्यादा नहीं होगा, मतलब बिलो 10,000 के पीपल होंगे HIV-2 के। लेकिन HIV-1 है वो एट प्रेजेंट वी कैन से दैट गवर्नमेंट रिपोर्टेड डेटा के हिसाब से मोर देन 25 लाख अभी हमारे पास 23 to 25 lakh people are infected by HIV-1 who are getting the treatment and who are face to face. We can observe and we have the data fact based. It is not a fact data. So government websites पे ये सभी data easily available है. I will share the NACO websites also at the next slides. सो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस की अगेन हम थोड़ी बात करेंगे आगे। हमने चार देखे, सीरो कन्वर्जन यानी कि जहाँ पे इन्फेक्शन लगेगा, विंडो पीरियड्स। अगेन आई सेड कि विद इन 3 months वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन आवर बॉडी, इट्स कॉल्ड अ विंडो पीरियड। बट विंडो पीरियड इज वेरी रिस्की। ड्यूरिंग द विंडो पीरियड इफ सम पर्सन विल बी टू intercourse with another people, the virus will be transferred to them. During the window period, if the woman is pregnant, the infection goes to the newborn, non-born baby also. अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन लगते हैं, यानी कि जैसे ही वायरस आइडेंटिफाई होता है बॉडी की इम्यून सिस्टम डैमेज होने लगती है, इन्फेक्शन दिखने लगते हैं बॉडी पे। असिम्प्टोमेटिक फेज, असिम्प्टोमेटिक फेज भी यहाँ पे देखा जाता है आगे चलते हुए। तो शुरुआत में कभी कभी हमारी बॉडी सिस्टम या ट्रीटमेंट्स अच्छी होने की वजह से असिम्प्टोमेटिक फेज आइडेंटिफाई होता है, बट जैसे जैसे वायरल लोड बढ़ता है बॉडी में उसकी प्रेजेंस दिखने लगती है, हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सो HIV और एड्स के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम उसका डिफरेंस देखेंगे कि HIV इज डेफिनेटली वायरस जो एड्स का कोज बनता है। और कोई भी HIV पर्सन है उसको जरूरी नहीं कि एड्स होना ही चाहिए, यानी कि एड्स इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी HIV पॉजिटिव पीपल। व्हाई? बिकॉज it is again I want to say that those persons who are taking the proper treatment, getting the counseling on time, and they are can take care of food, health, hygiene, and सबसे important बात protected sexual life। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो उसको एड्स की कंडीशन से दूर रखता है। So after getting the HIV infection, the people has to be positive living and positive thinking. And definitely when someone HIV positive, but responsibility came to the another people of society. अगर out of 100 5 people are HIV infected,
तो enabling environment or we can say rehabilitation of their people, the responsibilities came to 95 people. So हमें वो 95 peoples की ओर इंडिकेट करना है। एक HIV पॉजिटिव पीपल अगर चाहे तो बहुत सारे लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकता है अगर उसके पास अंडरस्टैंडिंग या फिर वो टाइमली काउंसलिंग ना हो। तो इसीलिए वी आर वर्किंग विद सम काइंड ऑफ सेक्स वर्कर्स, सम काइंड ऑफ ट्रांसजेंडर, सम काइंड ऑफ gay communities, yeah, we can say LGBT community, and we are giving a understanding to them that somehow they are infected by HIV, they have to be stop the infection, उनके तक ही रखना है, यानी कि वो आगे ब्रिज पॉपुलेशंस में नहीं ले जाना है। सो अगेन जो जिनके पास एड्स तभी होगा जब वो HIV का इन्फेक्शन होता है, यानी कि अगर कोई पर्सन को मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस आइडेंटिफाई होते हैं बॉडी में, तो डॉक्टर कभी ना कभी वो HIV के टेस्ट के लिए बोलते हैं। ऐसा आपने इवन बहुत सारे केसेस में मैंने देखा, किसी को जॉइंटिस हुआ है तो लेबोरेटरी में डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं हिस्ट्री के बेस पे कि हाँ इतनी बार इतना सीवियरिटी है, इतनी बार बार उसको ये बीमारी हो रही है, अलग अलग बीमारी हो रही है, तो इट्स मे बी अ कोज ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो तभी भी HIV इन्फेक्शन किया जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्जिकल ऑपरेशन में सबसे पहले अब HIV का टेस्ट भी शामिल कर दिया गया है, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी एंड सी, गवर्नमेंट इज फोकस ऑन सच काइंड ऑफ VDRL, RPR एंड HIV इन्फेक्शंस ऑल्सो। HIV का प्रोग्रेस देखें तो मतलब एड्स का एक रिजल्ट ही है, यानी कि एड्स रिजल्ट इट्स बिकॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो हमें हमेशा ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कोई पर्सन, बट वी आर डेफिनेटली वी आर नॉट लेबलिंग एनीवन, बट जहाँ पे भी कैसा ऐसा लगता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन वी हैव टू गो फॉर द HIV टेस्ट। और when doctor या some our medical person will be safe for to test HIV, we don't have to ask any question and we have to follow the medical procedures। क्योंकि कई बार यही देखा गया है कि भाई हाँ मैंने कभी कहीं बाहर नहीं गया हूँ, आई डोंट हैव एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी अनदर नॉर्मल unknown peoples, so why I have to do HIV test? But when the doctors are says we have to follow the testing, and we have to test it for HIV। HIV इन्फेक्शन अगेन आई विल टू से दैट अगर बहुत सारे खुद मैं अगर HIV पॉजिटिव मैं हेल्दी हूँ, आई डोंट हैव एनी इन्फेक्शन, आई हैव अ गुड बॉडी, आई हैव गुड स्टैमिना, आई हैव गुड एज, आई हैव गुड फिजिकल स्ट्रक्चर्स, स्टिल आई हैव एबल टू स्प्रेड माय HIV इन्फेक्शन टू समवन। सो HIV इन्फेक्शन स्प्रेड होने के लिए एक इंसान के अंदर HIV का वायरस होना ही काफ़ी होता है। एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि HIV इन्फेक्शंस कैसे ट्रांसमिट होता है। सो देर आर गवर्नमेंट अभी आइडेंटिफाई करके हमें, मतलब जो गवर्नमेंट के IC दिखाते हैं कि ओनली 4 वेज के थ्रू ही HIV इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन होता है। जब मैं सिर्फ 4 का ओनली 4 वेज बोलूंगा तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो मीट्स थे या अभी तक के जो भी अंडरस्टैंडिंग थे वो कहीं ना कहीं आके हमारे यहाँ क्वेश्चंस में आएंगे कि भाई वाई ओनली 4, इससे भी होगा उससे भी होगा, ये सब जो है वो सब मिथ्स है एंड इफ एंड बट्स वाली बात है। अगर हम 2 लोग गाड़ी पे जा रहे हैं बाइक में या फिर हम बस में जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ना कहीं किसी का खून कहीं ना कहीं लग जाता है और वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी वैसे एक्सीडेंशियली इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन हो सकता है, बट ये रेयर टू रेयर वाले केसेस है, नॉट रेगुलर होने वाली घटना है। बट जो कॉमनली देखा जाए तो ओनली 4 वेज आर कोजेस कि जहाँ पे HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड होता है। यहाँ पे जो देखा गया है वो सीक्वेंस में इसीलिए मैं बोलूंगा 1 2 3 4 नंबर्स देने का क्या रीजन है। सबसे पहले मैं 4 नंबर को क्यों नहीं बोलूंगा, सबसे पहले 1 नंबर की जो बातें लिखी उसको ही मैं क्यों बोलूंगा, बिकॉज ऑफ कॉमनली अभी देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो भी न्यूली इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन हो रहे हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए, सेक्स के थ्रू हो रहे हैं। सो कोई भी टाइप्स का सेक्स हो, या एनल हो, ओरल हो या वजाइनल हो, HIV इन्फेक्शन का रिस्क तीनों लेवल पे रहा है ना। तो ये हम बहुत कॉमनली या बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। अनप्रोटेक्टेड सेक्स बहुत ज़्यादा, या पहले गवर्नमेंट 85% बोलती थी, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके तहत बाकी के 2 3 और 4 रीजन को बहुत सारे लेवल पे कंट्रोल किया जा रहा है और उसको एलिमिनेशन मोड पे ला गया है, लाने की कोशिश हो रही है। बट ओनली 1 नंबर का ऐसा रीजन है कि जहाँ पे
गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इट इज ओनली द एक्ट कि जहाँ पे दो लोग के बीच में बात हो रही है। बाकी का आप सेकंड थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, मेडिकल या फिर कोई थर्ड पार्टी की प्रेजेंस या फिर उसका इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है। सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बात करें तो इट इज नॉट ओनली विथ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे जो जो भी टाइप्स ऑफ सेक्स है, यानी कि एलजीबीटी कम्युनिटी को इंडिकेट करते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि गेज कम्युनिटी या लेस्बियन के बारे में, या फिर जो ग्रुप सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, या फिर जहाँ पे कोई ऐसे हैरेसमेंट या अब्यूजेस होते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ों को हम इंडिकेट करेंगे। इवन ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज जो शायद उसके रीति रिवाजों को या उसके घरानों को फॉलो नहीं करते हैं, दे आर ऑल्सो आर डूइंग सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो भी यहाँ पे रिस्क पे आते हैं। सेकंड जो रीजन है ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, और या फिर ब्लड के प्रोडक्ट्स, यानी कि कभी आपने सुना होगा कि प्लाज्मा चढ़ाया गया, यानी कि ब्लड पूरा होल कंटेंट नहीं देके उसमें से जो जरूरी चीजें हैं उसको सेपरेट करके वो चढ़ाया जाता है। तो उसमें भी अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो HIV वायरस कैन बी स्प्रेड टू अनदर पीपल्स। थर्ड वाला जो है सिरिंज एंड नीडल्स। सिरिंज एंड नीडल्स की जब बात आती है तब कॉमनली हम सोचते हैं कहाँ इंजेक्शन के बारे में, बट इट इज नॉट अबाउट द इंजेक्शन, it is about the needle and syringe using for the taking a drugs. Those people who are taking a drug through the injections will be a cause of HIV and hepatitis infection spreading. तो ये ज्यादातर इंडिया के कुछ कुछ स्टेट में ज्यादा देखा जाता है। मैं कॉमनली बोलूंगा तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा देखा गया है। पंजाब की आप बात करें या फिर जो भी हमारे ऐसे स्टेट मेट्रो सिटीज की बात करें जहाँ पे ड्रग्स लेना बहुत एक कॉमन कल्चर होता जा रहा है, हमारे यूथ, हमारे यंग जनरेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये किस तरह से इन्फेक्शन मोड पे मतलब सीवियर बनता है कि जैसे कि हम कुछ चीजें लेते हैं चार दोस्त मिलके तो एक साथ मिल बांट के खाते हैं, थोड़ा मैंने खाया थोड़ा उसने खाया। सेम जहाँ पे ये निडल सॉरी सिरिंज भरते हैं कंटेन की, जैसे कि 5 ml का एक कंटेन है मेडिकल जो भी उसका केमिकल है ड्रग्स का, वो भरते हैं और फिर वो शेयर करते हैं, यानी कि पूरा 5 ml वो एक पर्सन नहीं लेगा, वो थोड़ा सा लेगा, 1 या आधा ml, फिर वो नीडल और सिरिंज सीधा दूसरे को शेयर करेगा, जस्ट लाइक हुक्का या वी कैन से बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह से वो शेयर करता है। तो सेम नीडल दूसरी जगह पे पहुंचने के वजह से वो पर्सन के अगर 5 में से किसी एक को कोई इन्फेक्शन से जो ब्लड रिलेटेड है वो डेफिनेटली दूसरे के अंदर स्प्रेड ऑन होगा। तो नीडल एंड सिरिंज का ये रीजन यहाँ रखने का ये वाला ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो मेजर पॉइंट है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने डेफिनेटली सभी जगह पे ये रूल्स बनाया कि वी हैव टू यूज अ डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंज। तो आप देखोगे कि उसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी गवर्नमेंट ने बहुत कम से कम बनवा दी है, ताकि एक आम से आम क्लिनिक वाला डॉक्टर भी होगा वो भी एक इजी मोड पे उसको परचेस करके यूज ऑन कर सकता है। सो नीडल एंड सिरिंज को गवर्नमेंट की अदर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में एज वेल एज ड्रग लेने वाले जो लोग हैं, जो ये नशा करने वाले लोग हैं जिसको हम ड्रग यूजर्स बोलते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फोकस किया गया है। सो ये नीडल एंड सीरीज की जब बात करते हैं तब फिर हम कभी ये लेक्चर सुनने के बाद ये ना करें कि कोई डॉक्टर के पास जाए और पूछे हाँ सर आपने डिस्पोजेबल यूज की है या नहीं की है। So everyone are following that because it is in our medical regulations में वो आ गया है, but we have to care always definitely in general practitioner or we can say clinic also even though, but in HIV context को जब हम बात करेंगे तब हम इसको फोकस करेंगे कि जो ड्रग यूजर्स कम्युनिटी है इसके अंदर ये नीडल एंड सिरिंज से ब्लड के दूसरे डिसीज, यानी कि मैं हेपेटाइटिस की बात करूं या फिर कोई और डिसीज हो इंक्लूडिंग HIV, वो स्प्रेड ऑन होने की संभावना है। फोर्थ की जब बात करते हैं तब मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसके अंदर जो रहने वाला बच्चा है वो माता अगर पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन करेगी। और वो स्प्रेड ऑन करने के स्टेजेस है ड्यूरिंग अगर इन्फेक्शन नहीं है, बट डिलीवरी के टाइम पे भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो टाइम पे ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन हो सकता है। और थर्ड वाला जो स्टेज है उसमें मदर जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसमें भी HIV इन्फेक्शन का चांसेस रहता है।
सो ये 4 रीजन है, और 4 रीजन के सामने डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से हम कैसे उसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो डेफिनेटली उसमें कॉन्डम का निरोध का इस्तेमाल जो है वो कॉमनली हम देखते हैं कि इसका एक प्रोटेक्शन है। इट इज नॉट ओनली फॉर HIV को प्रिवेंट करने के लिए, बट अनवांटेड प्रेगनेंसी एज वेल एज STI STDs जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसके लिए भी कॉन्डम हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। और एक इजी अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, और वेरी फिजिबल है टू यूज एवरीवन। ब्लड की बात करें तो ब्लड कॉमनली कहीं नहीं मिलता। जैसे कि आज मेरा मूड हुआ, चलो मॉल में से कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल भी खरीद लिया और ब्लड का एक पाउच भी खरीद लिया, ऐसा कभी नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने ब्लड के लिए रेगुलेशंस बनाए हैं। ओनली फ्रॉम द लाइसेंस ब्लड बैंक वी आर गेटिंग द ब्लड, एंड वहाँ पे ही आफ्टर गेटिंग एवरी टेस्ट वो ब्लड चढ़ाया जाता है ना। तो ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड्स कहीं कॉमनली नहीं मिलते, वहाँ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। नीडल एंड सिरिंज की बात करें तो द कम्युनिटी हु आर यूजिंग अ ड्रग्स, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसको IDU प्रोग्राम बोलते हैं। इंटरवेनियस ड्रग यूजर्स के लिए चलाए जाने वाले टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम होते हैं। जो जो आइडेंटिफाइड ड्रग यूजर्स है उनको नई नीडल और सिरिंज दी जाती है। गवर्नमेंट जैसे कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहाँ ये जो ड्रग यूजर्स कम्युनिटी है, जिसको IDUs बोलते हैं, इंटरवेनियस ड्रग यूजर्स बोलते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स के अंतर्गत नीडल एंड सिरिंज नई वाली दी जाती है। जैसे कि कोई एक ड्रग यूजर एक वीक में 3 नीडल एंड सिरिंज यूज करता है, तो उसको महीने में 4 से 12 नीडल एंड सिरिंज दिया जाता है। ओनली देना ही काम नहीं है, बट वो यूज की गई नीडल और सिरिंज को कलेक्ट भी करते हैं और उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है, ताकि दूसरे लोगों को उसका इन्फेक्शन न हो। इट मीन्स नॉट इट कि यहाँ पे उनको हम डिपेंडेंसी बना के या फिर ड्रग को बढ़ावा दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि एटलीस्ट उनको कांटेक्ट में लाया जाए, उनको समझाया जाए, धीरे धीरे काउंसलिंग दिया जाए कि वो ड्रग्स को छोड़ के OST जो मेडिसिन आती है उस पे चला जाए। OST मेडिसिन एक ऐसे केमिकल्स है, वो जस्ट लाइक ड्रग्स के बराबर काम करती है, यानी कि उनको जो एक आदत पड़ी है, एक हैबिट्स पड़ी है ड्रग लेने की, उसको पैरेलली सपोर्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स मेडिसिन दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, जिसको हम OST बोलते हैं। उस OST सेंटर कुछ कुछ सिविल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, जहाँ पे ड्रग यूजर्स कम्युनिटी ज्यादा देखी जा रही है। तो काउंसलिंग देना, वो ड्रग्स को धीरे धीरे छोड़ दें, या फिर वहाँ पे कोई अगर आइडेंटिफाइड HIV पॉजिटिव है तो वो अपना इन्फेक्शन दूसरे तक ना पहुंचाए, इसके लिए ये प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो ड्रग यूजर्स कम्युनिटी पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। फोर्थ की जब बात करें तो हर एक प्रेग्नेंट महिला को हमेशा अपना HIV टेस्ट करना है, ये गवर्नमेंट ने अभी मैंडेट कर दिया है। यानी कि इफ एनी वुमन इज प्रेग्नेंट, व्हेन शी इज गोइंग टू रजिस्टर हर नेम इन आंगनवाड़ी और आशा वर्कर और एनी हेल्थ फैसिलिटी, दे आर मेकिंग ममता कार्ड। पहले उसका एक ममता कार्ड बनेगा, जो मदर कार्ड या फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि कब से उसका प्रेगनेंसी का साइकिल चालू हुआ, कब कब उसको आना है, व्हेन शी हैज टू बी विजिटेड, when expected date of delivery is there, what is the basic informations like height, weight, hemoglobin और another reports also। तो उसमें HIV को भी मैंडेट किया गया है, और उसके साथ साथ VDRL RPR यानी कि जिसको सिफिलिस हम बोलते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो फोर्थ वाले रीजन में माता द्वारा बच्चे को सिर्फ HIV ही नहीं, बट HIV के साथ साथ सिफिलिस यानी कि ड्यूअल एलिमिनेशन के लिए काम किया जा रहा है अक्रॉस द इंडिया। तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई एक महिला है, एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर उसको प्रेगनेंसी रही है तो नेक्स्ट पीरियड साइकिल उसका नहीं आएगा, तो उसको पता चलेगा कि शी आर मे बी प्रेग्नेंट, तो वो टेस्ट करती है। अगर प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में या प्राइवेट में करवाएगी। तो वहां पे जब जाएगी तब उसका आइडेंटिफिकेशन, अगर HIV पॉजिटिव आइडेंटिफाई होता है तो शी हैज टू बी स्टार्टेड ART मेडिसिन
एज सोन एज, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ये मैंडेट कर दिया है टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी का. दोज पर्सन्स हु आर आइडेंटिफाइड एचआईवी पॉजिटिव, दे हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट without irrespective of any other further testing or any other further stages. So within a week या within a days they have to be started the medicine. Medicines का काम यही है कि एचआईवी के वायरल का मल्टीप्लिकेशंस को बॉडी में स्टॉप कर देता है, यानी कि जितने वायरस आए हैं उसको पूरा एक जेल में डाल देते हैं, प्रिजन में डाल देते हैं. So the pills is very effective, the medicine is very effective to control the populations of HIV virus in our body. तो मदर को भी वो मेडिसिन देने की वजह से वो वायरल का जो मल्टीप्लिकेशन वो स्टॉप हो जाता है और बच्चे तक वो पहुंचने की संभावनाएं 80 to 85% स्टॉप हो जाती है. बाकी का काम जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंट डिलीवरी एंड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, उसके रिस्क को भी कम किया जा रहा है. जैसे ही वो नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश होती है, बच्चे को जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको 45 डेज के लिए नेवरापाइन सिरप दिया जाता है. नेवरापाइन इज द वन सिरप कंटेन मेडिसिन ही है जो ART एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी के कंटेन में है. और वो मेडिसिन देने की वजह से बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज जो अगर HIV की आइडेंटिफाई होती है तो उसको सब आइडेंटिफाई मतलब या फिर इन्फेक्शन लगने को प्रिवेंट करती है. बच्चे की एज 2 साल या 18 महीने की होती है तब तक अलग अलग टेस्टिंग उसके होते हैं, यानी कि पहला टेस्टिंग होता है 45 डेज में, उसके बाद 6 मंथ में, उसके बाद 12 मंथ में और लास्ट वाला होता है 18 मंथ में. ये 4 टेस्टिंग के बाद आइडेंटिफाई होता है कि बच्चा HIV पॉजिटिव है कि नहीं. अगर ड्यूरिंग द 4 टेस्ट कहीं ना कहीं अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो द चिल्ड्रन हैज टू बी आल्सो स्टार्ट अ पीडियाट्रिक मेडिसिन जो HIV के लिए आती है. तो यहाँ पे नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन बट द ट्रीटमेंट पार्ट इज आल्सो लुकिंग बाय द गवर्नमेंट. सो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है. लास्ट 5 to 7 ईयर्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे लेवल पे हमने सफलता हासिल की है. यानी कि मैं एग्जांपल में बात करूंगा कि जो भी आइडेंटिफाई HIV पॉजिटिव महिला है उनके द्वारा आने वाला बच्चा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वो बच्चे को इन्फेक्शन पास ऑन नहीं हो रहा है थ्रू द ट्रीटमेंट, through the our counseling as well as immediate approach whenever such kind of cases will be identified. So ये 3 रीजन जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है वो बहुत सारे लेवल पे कंट्रोल में आ चुके हैं, बट ओनली जो हमारा अनप्रोटेक्टेड सेक्स की जब बात करते हैं वही ज्यादातर कोज बनता है फॉर द HIV स्प्रेडिंग. सो मैंने अगेन बोला कि हमारे बॉडी में जो HIV वायरस जो है वहाँ उसने अपने घर कहाँ कहाँ पे बनाए हैं. तो अगर मैं पहले जो शुरुआत में बात की उसको वापस एक बार बोलूंगा कि क्यों हम इस वायरस को जीनियस बोलते हैं. ह्यूमन बीइंग को मतलब मनुष्य जात को आगे बढ़ने के लिए अपने मनुष्य की ही जरूरत पड़ेगी. कोई कितना भी अच्छा रोबोट बना ले, लेकिन जो सेंसिटिविटी या फीलिंग्स या अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग में है, मनुष्य में है, वो शायद मशीन में अभी तक हम नहीं भर पाए हैं. कुदरत को चैलेंज करने वाली एक बात करें तो ब्लड की बात करें, ब्लड बनने वाली फैक्ट्री आज तक नहीं बन पाई है ना. वी कैन एक सी कॉमनली कि तो HIV ने क्या सोचा कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान का आगे बढ़ना ही मुश्किल है. बिना ब्लड का तो इंसान रॉबोट ही होगा डेफिनेटली. तो ब्लड में उसने अपना घर बनाया. तो यू कैन सी कि 1 ml अगर ब्लड होता है तो उसमें कितनी क्वांटिटी उसने अपनी रखी है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ तक वो रह सकता है. सेकेंडली उसने अपना रेसिडेंस बनाया सीमेंट में, यानी कि पुरुष के वीर्य में. अगर कोई नए बच्चे का या नए इंसान का जन्म होना है तो महिला और पुरुष के जो भी हमारे X and Y and X की जो बात है वहां पे आके रुकती है. तो सीमेंट में उसने अपना घर बनाया ताकि इंसान को अगर दूसरे इंसान जब बनता है उसको इन्फेक्शन करने के लिए वो अपना एक रास्ता खोल सके. वजाइनल फ्लूइड्स कुछ होते हैं, जैसे कि पीरियड की बात करें या वाइट डिस्चार्ज की बात करें या जो भी वजाइनल फ्लूइड्स होते हैं एक्सपेक्टेड यूरिनल के अलावा उसमें भी HIV के वायरस आइडेंटिफाई होते हैं. और कुछ एमोनिकल हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें भी होते हैं, बहुत रेयर टू रेयर, जैसे लाइक मिल्क की बात करें या फिर कुछ हमारे अनदर फ्लूइड्स के बारे में. सलाइवा में 1%, 1 की बात की है, 1 इट्स अ क्वांटिटी ऑफ वायरस, नॉट अ परसेंटेज. सो बहुत रेयर टू रेयर केसेस में सलाइवा में है, बट जनरली वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होते हैं अगर वहाँ पे कोई ओपन कट या ब्लीडिंग नहीं है तो.
शरीर में हमारे बहुत सारे अनदर फ्लूइड्स भी है, जैसे नीचे लिखा है स्वेट्स है, या फिर हमारे फिजिक्स की बात करें, वॉमिटिंग की बात करें, या फिर यूरिया या फिर टीयर्स की बात करें। यहाँ पे भी HIV के वायरस नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड। जहाँ पे मिक्स होगा वहीं पे हमें HIV का प्रेजेंस दिखेगा। सो बेसिकली ये कंटेंट जो है HIV का हमें वहीं पे आइडेंटिफाई होता है जहाँ पे हमारा ब्लड कहीं में मिक्स होता है, या फिर यू कैन से ब्लड के ओपन कट है, लाइक मेरे टीथ या मेरे मसूड़ों में कहीं पे ब्लीडिंग आ रहा है, तो वहाँ पे ये है। ओके। सो हम थोड़े स्पीड में थोड़े पॉइंट्स देख लेंगे। अगेन यहाँ पे कुछ पोर्शंस ऑफ इन्फेक्शंस लिखे हैं, बट चांसेस कितने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सेक्सुअली हम बात करेंगे तो HIV इन्फेक्शंस के पोर्शंस को बात करते तो 86% चांसेस है, बट चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस बहुत इसमें 0.1 to 1 लिखे हैं बिकॉज ऑफ वो एक्ट और सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड है। ब्लड की बात करें या फिर नीडल एंड सिरिंज PMTC की, यानी कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की बात करें, या अदर ऑनलाइन केसेस की बात करें, ये सब एक सर्वे या फिर एक कॉमनली आइडेंटिफाइड डेटा है। बट डेफिनेटली इसके बारे में आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो WHO या फिर नाको की वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन लेनी होगी, वो जो ऑथेंटिक होगी। कोई भी पर्सन को टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो एक विंडो पीरियड का आइडेंटिफाई होता है, यानी कि वी हैव टू वेट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के बाद वापस हमें अपने इन्फेक्शन करना चेक करना रहता है, ताकि हम उसमें HIV इन्फेक्शन है कि नहीं वो पता चलेगा। विंडो पीरियड की अगेन बात करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इज वेरी सीन। कॉमन मीट्स की बात करें, जैसे मैंने अभी मॉर्निंग में ही थोड़ा ओपनली बात किया कि मॉस्किटो बाइट करता है तो HIV होता है कि नहीं होता है, ओरल सेक्स में भी कोज ऑफ HIV है ना। तो ये सब मीथ्स है, यहाँ पे मैंने सब मीथ आइडेंटिफाई किए हैं, है ना। HIV कैन ऑल्सो ट्रीटेबल, एड्स कैन ऑल्सो भी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एड्स कैन क्योरेबल, है ना, एड्स को क्योर कर सकते हैं थ्रू द ट्रीटमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट ऑफ मेडिकल। बट HIV इन्फेक्शन को हम ट्रीट संपूर्णतः क्लियर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये बॉडी में एक बार आता है, उसके बाद वो रिन्यू नहीं होता है। अगेन मैंने यही बात करी, तो इसमें ट्रीटमेंट की फिलोसफी है। एक तो ट्रीटमेंट जो होती है क्या करता है, तो रिप्लिकेशंस को स्टॉप करता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को बढ़ने नहीं देता है। और ट्रीटमेंट आज के टाइम में बहुत इफेक्टिवली यहाँ पे देखी जा रही है HIV के कंटेक्स में। इन इंडिया 2004 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट लेवल पे ट्रीटमेंट शुरू हुई, जिसको हम ART या एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ये सॉल्यूशन या क्योरनेस नहीं है HIV के लिए, लेकिन ये HIV के लाइफ साइकिल को ब्रेक करता है, यानी कि वायरल पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकता है। और हर एक गवर्नमेंट ART सेंटर्स में फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है। तो ART इज ओनली एक यही हथियार है हमारे पास टू फाइट अगेंस्ट द HIV। अब कैसे हम प्रोटेक्शन अपने आप को फील करें, तो एक तो सिंपल सी बात है, या तो फिर हम सेक्सुअल एक्ट में ही नहीं जाएं, या फिर जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक पार्टनर के साथ करें, यानी कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स पार्टनर फॉर सेक्सुअल एक्ट हम ये करें। प्रोटेक्टेड सेक्स हम करें, या फिर निडल एंड सिरिंज में वो स्टेरिलाइज हो, या न्यू वाली निडल सिरिंज यूज करें, और सेफ ब्लड हमें यूज करना चाहिए। कॉन्डम यूज के लिए कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि भाई हमें कोई भी वजाइनल हो या एनल हो, अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि इवन ओरल सेक्स भी हो तब भी मेल या फीमेल हो, दे हैव टू यूज अ कॉन्डम। और कॉन्डम जो भी है वन टाइम यूज है, वी हैव टू यूज वेरी केयरफुली इट। हमारा नाखून भी अगर लग जाता है तो कॉन्डम टीयर होने के चांसेस होते हैं। नॉट ओनली इन सीमेन बट प्री कम है वो ऑल्सो HIV इन्फेक्शन, HIV के वायरस प्रेजेंस होते हैं, तो प्री कम के दौरान भी HIV का चांसेस रहता है। सो कॉन्डम शुड बी नॉट वेयर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, बट वी हैव टू वेयर व्हेन द पेनिस इज इरेक्टेड। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर दैट। कुछ पॉपुलेशंस होती हैं जो अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड होती हैं। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसमें हम HIV के लिए जब देखते हैं, तब सेक्स वर्कर की बात करें, या फिर जो टेरिफिकेट वुमेन्स होती हैं जो
मतलब सेक्सुअल एक्ट में कहीं ना कहीं अब्यूज होती हैं। द मैन हु आर हैविंग अ सेक्स विद द मैन, यानी कि जो जिसको हम एमएसएम या सेक्सुअल एक्टिविटी विद सेम सेक्स बोलते हैं, लीडर एंड सीरिंग बाय द फॉर द ड्रग यूजर्स। और यहाँ पे ब्रिज पॉपुलेशन कुछ बनते हैं, पार्टनर्स या फिर ट्रकर्स, ड्राइवर्स या फिर पॉपुलेशन हु आर माइग्रेटेड, तो वो ब्रिज बनते हैं और वो इन्फेक्शन ले जाते हैं उनके घर तक। यानी कि अगर कोई माइग्रेंट पीपल दिल्ली में आके काम कर रहा है, वहाँ पे आर गेटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम द सेक्स वर्कर, and the infection is goes to his native, to her wife, and definitely it will become to नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि बेबीज तक पास ऑन होता है। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है एक इन्फेक्शन दूसरे तक ले जाने के लिए। ये गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम है, आई बी नॉट मोर एलोबरेटेड क्योंकि ये 1992 से इंडिया में शुरू हुआ। फर्स्ट केस हमने आइडेंटिफाई किया 1986 में चेन्नई में, वहाँ पे एक सेक्स वर्कर ग्रुप में केस आइडेंटिफाई हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। 1986 से 1992 तक गवर्नमेंट सोचती रही, काम शुरू करती रही। फिर जाके नाको की स्थापना हुई। नाको नेशनल एड्स सेंटर ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम शुरू करने चाहे, अलग अलग चरण में, अलग अलग फेजेस में प्रोग्राम शुरू हुए, विच इज कॉल्ड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम टू, मतलब राइट नाउ इट्स 5। सो 99 के बाद दूसरा फेज शुरू हुआ 2007 में। और वहाँ पे भी कुछ कुछ काम शुरू है। वी कैन से कि भाई इतने आरटी सेंटर शुरू हुए, आईसीटीसी इतने शुरू हुए, और इतने लोगों को हमने ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। 2012 में एनसीपी 4 शुरू हुआ, जहाँ पे हमने टारगेटेड इंटरवेंशन शुरू किए, यानी कि जो की फोकल पॉपुलेशन से उसको फोकस करना शुरू किया। अभी करंटली चल रहा है 2000 नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेटेड एचआईवी एंड टीबी। तो उसके लिए पूरा काम किया जा रहा है। टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई। 2017 में हमारा एचआईवी बिल एक्ट पास हुआ है, जहाँ पे एचआईवी पॉजिटिव पीपल को कुछ ह्यूमन राइट्स या फिर उनकी जो भी सोशल इश्यूज है उसको देखते हुए प्रोविजंस किए गए हैं। और यहाँ पे कॉमनली एक नेशनल लेवल पर प्रोग्राम अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, संपूर्ण सुरक्षा स्ट्रेटेजी, ट्रिपल एस जिसे बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पर्सन्स को अगर एसटीआई है, एचआईवी है, या कोई एचआईवी रिलेटेड ट्रीटमेंट लेनी है, सर्विसेज लेनी है, तो अंडर द वन रूफ द ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द कॉमन पीपल्स। तो उसके लिए ये ट्रिपल एस मॉडल अभी इम्प्लीमेंट किया गया है। मेनली मुझे इस पे थोड़ा फोकस करना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्कर्स, जो सोशल वर्कर्स हैं। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक, हमें इसको रिमूव करना है अगर इंडिया में से, तो हमें 395 पे फोकस करना है कि जो भी हमारे लोग हैं सोसाइटी में, एक्सपेक्टेड एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं, दे हैव टू बी एंश्योर 95% दे आर दे। इसका मतलब हैज टू बी टेस्टेड एचआईवी। अगर वो एचआईवी करेंगे तब पता चलेगा कि वो एचआईवी इन्फेक्टेड है या नहीं है। उसमें से 95 पीपल्स को हमने एआरटी ट्रीटमेंट के साथ लिंक करना है, ताकि उनका वायरल सप्रेशन कर सके। और वो जो पर्सन है उसमें से 95 लोगों को एचआईवी का इन्फेक्शन, वायरल जो है उसका सप्रेस होना चाहिए। तो 395 को अचीव करने के लिए वी आर लुकिंग 2030 का हमने लक्ष्य रखा है। तो हम जब भी हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी सोसाइटी में, या हम जब हमारे फील्ड में काम करते हैं, तब हम ये राष्ट्रीय जो लक्ष्यांक है उसके फोकस में रख के इनडायरेक्टली काम करेंगे। यानी कि हमें सबको ये नहीं कहना कि हाँ आप जाओ टेस्ट करो, लेकिन कहीं ना कहीं हम जहाँ पे भी है, जैसे भी है, जितने भी है, वो लेवल से विल बी स्टार्टेड टू टॉक ऑन एचआईवी एड्स। इफ देयर इज any kind of a requirement of provide support, or we can say awareness or information, we have to start it, then only we should be get the achievement. So, being accountable, create awareness, active partnership, breaking the myths, maintain the HIV, mainstream the HIV AIDS. यानी कि if there is any training plan, any workshop is planned, we have to discuss 30 minutes on HIV AIDS. It will be also give awareness to the community, or we can say a participant. Enabling environment create करना है। कहीं ना कहीं we identify any persons who are HIV positive, we have to be support to them. We have to be give a moral support to them to live a healthy and happy life.
बिकॉज इफ द पर्सन हैव एवरीथिंग बट अगर हैप्पी माइंड नहीं रहेगा तो उसको लाइफ में आगे जीने का मोरल नहीं रहता है. सो enabling environment is very important. And last one is getting to zero. Government have also one target that new infections को हमें जीरो करना है, एड्स के हिसाब से जो डेथ हो रही है उसको जीरो करना है, और स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन को हमें जीरो करना है. So this is my side content which is I need to be delivered to all of you. I think it is very primary level, but when we are discussing about various kind of topics, it is not covered during the one single session. Maybe it's take a lots of time and lots of session, but I will try myself to keep during this session enough content I can deliver. So Pradeep ji, I had covered here my session. So question and answer, if there is any, then we should be discuss on it. Thank you so much, sir. Ji. Really, you have covered so many things. Actually, I did not know. Actually, no, it is short period of time we could cover all these things, starting from the history to what is happening nowadays. Yeah. So, thank you once again so much for your Thank nice presentation. Thank you, sir. And सर now I आपका जो था request HIV-1 का जो MNO पीपल टाइप था सर, MNO टाइप क्या है, मुझे समझ में नहीं आया इसमें. So ये अगेन मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि जब HIV वायरस आइडेंटिफाई हुआ तो जो साइंटिस्ट हमारे थे वो उसका एक रेंज रखते गए, HIV-1 जैसे हम H1N1 या फिर कोविड की बात करें तो वो स्टार्टिंगली नेम थे, वो कैटेगरी है, लेकिन वो अभी इनिशियल स्टेज में, अभी प्रेजेंट स्टेज में नहीं है. जस्ट ओनली HIV-1 और 2 पे फोकस किया जाता है. सो वो प्राइमरी लेवल पे राइट नाउ नहीं है. थैंक यू सर इतना अवेयरनेस करने के लिए हम लोगों को. Yeah. can you, madam, Purnasri, madam, can you introduce yourself, please? Myself, I am a MSW in 4th semester in DDC. Why are you? Okay. Good evening. Sir, I'm Jyotsna Das and I'm speaking from Paradeep. I'm a MSW student. I have done it and I did it because I faced some problem while working with my cancer patients. I'm working for Jagatsinghpur district cancer patients, especially those who need medical aid because they have extremely lack of finance. For them, I'm working. Now, my question is, sir, you told not everyone who is infected with HIV has AIDS. What is the time period when we get infected and the disease, we are having this disease? It's definitely depend on the person. Okay, if I getting an infection but I will not get a treatment on time, or maybe I'll refuse the treatment, or I say that I'm okay, I don't have any problem, why I should be take lifelong treatment? So those people will be stop the treatment and they are not taking the treatment. तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो खुद को एक तो मेंटेन करेगा कि मैं अपने आप को मेंटेन कर लूंगा, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत. पहली चीज. दूसरी चीज, जिसको ART शुरू की जाती है, दोज पीपल हु आर स्टार्टेड एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी, वो इतनी इफेक्टिवली काम करती है कोई पर्सन में कि उसकी वो कंडीशन आती ही नहीं है जहाँ पे उसकी बॉडी डैमेज हो. द इम्यून सिस्टम विल बी एवरी टाइम वेल मेंटेन. अगेन पॉजिटिव लिविंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग इज द ट्रू थिंग वेयर द पीपल कैन covered that security. यहाँ पे अच्छे फूड की बात आती है. That means not eat they have to eat and cashew and badam, but they have to be maintain a healthy lifestyle, like eat vegetables, eat proper vitamins, eat proper antibiotic food, like that. So cleanness, healthy and hygiene and everything, like when we are talking about women, then menstruation hygiene. When we are talking about men, then all the body hygienes are very important to manage immune system. तो ये सब की वजह से इंसान में वो स्टेज आता ही नहीं कि जहाँ पे HIV इन्फेक्शन एड्स के रूप में कन्वर्ट हो. और आज की डेट में यही हो रहा है कि इंसान जो भी HIV इन्फेक्शन है उसको रेगुलर काउंसलिंग दिया जाता है. व्हेन दे आर गेटिंग टू टेक मेडिसिन, वहाँ पे उनको बिठा के एवरी टाइम हर मंथ में जब भी जाते हैं उनको ये सब चीज़ें इंश्योर की जाती है. इसको फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं लोग, काउंसलर जो है वो, कि भाई हाँ आप पहले से बेहतर हो. उनका एवरी मंथ वेट किया जाता है, कहीं ना वेट तो लॉस नहीं हो रहा है. एवरी 6 मंथ दे आर गेटिंग अ TB टेस्ट होता है उनका. उनका हीमोग्लोबिन चेक होता है. एवरी ईयर उनका
वायरल लोड चेक होता है कि इंसान में CD4 और वायरल लोड की क्या कंडीशन है। ये सब मॉनिटरिंग होने की वजह से जो भी पेशेंट है उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अगर समवन हैव सम इश्यूज दैट इमीडिएटली डॉक्टर टेक सम इनिशिएटिव फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे एड्स की कंडीशन बहुत नहीं देखी जाती है। सो HIV इन्फेक्शन वहां तक स्टॉप रहता है। सो दिस इज सक्सेस ऑफ आवर ऑल डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो भी मेडिकल है, सोशल वर्कर्स है, वहाँ वर्किंग इन HIV फील्ड, उन सबकी मेहनत की वजह से आज ये सक्सेस हम प्राप्त कर सके हैं। Actually, it is praiseworthy because it's such a dangerous disease when one faces. Definitely. But Yeah, yet, my yeah. question is not answered, sir. If I am suffering from AIDS, Uh, and what is my safe period by which I can be identified and treated? it That is I want. okay. In AIDS condition, definitely depend on which kind of disease identified in your body during the AIDS condition. Okay, if there is a, we can say a brain level some issues, we can say a TB in brain. Okay, we can say a TB in bone. So that time it shows the severity, and so many times such kind of people cannot survive. AIDS can definitely we can cure, but timely on which stage the patient is come in front of the doctor, it is very important. And when we are talking about some village area or rural area, they are not getting a basic treatment at least. They are not coming in front of society with the title of HIV positive people. So such kind of cases will be harmful to the people. And you can see a time period. So it is more than 10 year also, more than 20 year also. I have some people I know very well from 1996 onward, they are not in AIDS condition right now. So the time duration is depend कि वो जो पीरियड है एड्स और एड्स के बीच में जो पोर्शन है वो कितना गैप रखना है वो इंसान खुद डिसाइड कर सकता है विद ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज. So, what I is the hope you are. important time, sir? What should we see so that you think that we must go for a HIV test? द बेसिक थिंग डेफिनेट वो कौन कौन से इन्फेक्शंस कितने रैपिडली हो रहे हैं उनको, यानी कि अगर मैं क्रोनिक डिसीज की बात करता हूँ, यानी कि जो माइनर है वो सीवियर मेजर में सीवियर में हो गया है, यानी क्रोनिक में बदल गया है, यानी कि डायरिया की बात करें या फिर फंगस इन माउथ या फिर वी कैन से पर्सनल पार्ट इश्यू या वी कैन से VDRL RPR पॉजिटिव syphilis is identified, yeah, STD RTIs we can say. Such kind of issues can be indicated, और TB is very commonly. TB के लिए तो हर एक डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आइडेंटिफाई विद TB इन्फेक्शन दे हैव टू बी मस्ट फॉर HIV इन्फेक्शंस, HIV टेस्ट के लिए, और जो भी HIV पॉजिटिव उनको TB टेस्ट करना है. तो TB को एक कॉमनली आइडेंटिफाई किया गया है एज अ OI और वी कैन से एज अ अलार्मिंग इंडिकेट फॉर HIV इन्फेक्शन. सो ये कुछ डिसीज है. Thank you, sir. Thank you very जी, much. जी. I am not medical person, so I am not very getting deeply in such kind of topic. But I work with the community medicine. I am not working with chemical medicine, but I work with community medicine. तो ये चीजें हमने बहुत सारी लोगों में भी देखी हैं. But when we are attending a national workshop and some seminar or session, then ये हमारे expert भी हम इस तरह से बताते हैं. I am very grateful to डॉक्टर गंगा खेड़कर वर्किंग इन पुणे नारी, उनके वर्ड से हमने ये सब नॉलेज प्राप्त किया है. तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. पद्मश्री अवार्ड जिन्होंने लिया है वो हमारे लिए एक गुरु बने हैं. तो वो हमारे लिए जो नॉलेज उन्होंने पास ऑन किया है इतनी ही सिंपल लैंग्वेज में, वो हमारे लिए वेरी यूजफुल है. सो आई जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ टू डिलीवर सेम नॉलेज टू यू ऑल ऑफ यू. Pradeep sir, anybody Thank else you, is there? sir. Question? Thank you. Actually, Pratima Patnaik also raised the same question what Jyotsna Das जी. also asked. Now, Rameshwari also want to please, Rameshwari, unmute and introduce yourself and ask whatever question you have. Hello, sir. First of all, myself Rameshwari Guru, DDC first year student. जी. I have one question कि अगर एक लोग को एक बार एड्स हो चुका है कि दोबारा होने का चांसेस है क्या? अच्छा, एड्स के कंटेक्स्ट में बात करूं तो HIV की आप बात कर रहे हो, ठीक है. एड्स अगेन, हाँ. हाँ, HIV इन्फेक्शन की. अगर कोई पर्सन को HIV इन्फेक्शन लगा तो उसको डबल इन्फेक्शन भी लग सकता है, ट्रिपल भी लग सकता है, यानी कि एक टाइप्स का वायरस बॉडी में है और दूसरे टाइप्स का भी वापस आएगा, तीसरे बार भी आएगा अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं हुए तो. सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ HIV इन्फेक्शन बॉडी में बार बार आते हैं, यानी कि
मेन मोर देन वन टाइम इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो हाँ, मैंने बोला कि प्रोस्टिट्यूटर्स जो होते हैं उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप बार बार उनके साथ होता है, तो क्या उन्हें भी एड्स या HIV का सामना हो करना सकता है, पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा, इसीलिए उसको की पॉपुलेशंस में रखा गया है। जब मैंने वो 3 सर्कल वाली बात की है, तो वहाँ पे इनको हमने देखा गया है कि दे आर ब्रीच पॉपुलेशन, यहाँ पे हाई रिस्क पॉपुलेशन है। आप ये स्लाइड में देख सकते हो, सेक्स वर्कर को हमने फर्स्ट में रखा है। ये ऐसी देह व्यवसाय करने वाली महिलाएं हैं जहाँ पे HIV का इन्फेक्शन मतलब इसलिए ज्यादा है कि उनकी पार्टनरशिप मल्टीपल लोग वहाँ पे आके उनके साथ सेक्सुअल एक्ट करते हैं। और वो एक ऐसा हब है या ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारे इन्फेक्शन दूसरे के लोग तक जा सकते हैं। इसीलिए दे आर कॉलिंग एज लाइक अ की पॉपुलेशन, और वी कैन से अ हाई रिस्क पॉपुलेशन। तो उसको भी अगर टाइमली टेस्ट नहीं किया जाता है तो वो इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों तक फैल सकता है, और वो इन्फेक्शन घर पे जाकर अपनी वाइफ को और आने वाले बच्चे तक के भी पास हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के थ्रू फीमेल सेक्स वर्कर्स जो हैं उनके लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो मैं जो NSCP 1 2 3 4 5 जहाँ पे दिखा है, वहाँ पे TI जहाँ पे लिखा था टारगेटेड इंटरवेंशन, वो टारगेटेड इंटरवेंशन सेक्स वर्कर के लिए भी चलाए जाते हैं, जो ऐसे ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी, और MSM यानी कि जो समलैंगिक पुरुषों हैं उनके लिए भी ये चलाए जाते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्स वर्कर से। आप कोलकाता का सोनागाची की बात करें, या फिर मुंबई की रेड लाइट एरिया की बात करें, या फिर दिल्ली के GB रोड की बात करें, तो यहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम बहुत बहुत थोरोली चलाए जाते हैं, ताकि सेक्स वर्कर्स में भी अवेयरनेस आए और ये लोग इस चीज को समझ पाए। थैंक यू सर। जी। So another question asked by Pratima Patnaik, can HIV live outside the body? नो नो, HIV कैन नॉट लिव आउटसाइड ऑफ BD। मतलब अगर उसको रिसर्च भी करना है तो नाको ने अभी जो हमें लेटेस्ट टाइम पीरियड दिया है 52 सेकंड का दिया है। लेकिन जब हमने डॉक्टर गंगा खेड़कर का सेशन सुना था, ही सेड कि वो प्रोटीन मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद विदिन अ सेकंड 10 पार्ट ऑफ सेकंड में वो किल हो जाता है। यानी कि वो इतना कोमल है कि उसको ये जो 4 फ्लूइड है उसमें से बाहर निकलना ही नहीं है, उसको उसमें ही रहना है, उसमें ही वो सर्वाइव कर पाएगा। उसमें से बाहर जाएगा तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि वो एक मतलब वो विलिंगनेस में ही नहीं रहेगा कि दूसरे के अंदर जाके इन्फेक्शन स्प्रेड ऑन कर सके। सो आउटर साइड में HIV वायरस नहीं लिव कर सकता। अगर कोई पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं एज लाइक फैमिली मेंबर या एज लाइक सोशल वर्कर, कहीं पे चलो मेडिकल यूनिट में हम हैं, तो हमें ये डर नहीं रखना है कि चलो उसका कहीं पे ब्लड गिरा है तो हम उसको टच करें या नहीं करें, या फिर क्या क्या केयर रखें। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस डेफिनेटली वहाँ पे है कि हमें ग्लोव्स पहनना है या फिर उसको ब्लीच करना है या वो है। लेकिन एक सिंपल डिटर्जेंट पाउडर भी अगर वहाँ पे क्लीन हो सकता है, या ब्लीच पाउडर भी डालो तो भी वो क्लीन हो जाता है। कोई भी केमिकल के संपर्क में आने से HIV वायरस डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि किसी का ऑपरेशन किया तो वो इंस्ट्रूमेंट हमें फेंक देने हैं। उसको प्रॉपरली आप ऑटोक्लेव करो, प्रॉपरली आप एंटीबैक्टीरियल करो, वो यूज कर सकते हैं दूसरे पेशेंट के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी हमें हमारे अगर कोई मेडिकल यूनिट है तो वहाँ पे भी क्रिएट करनी है। सौम्या है क्वेश्चन आई थिंक। Soumya Kapoor, please unmute and introduce yourself and ask question whatever you have. Sir, good evening. My name is Soumya Kapoor. I am pursuing MSW from Punjab University. सर मुझे विंडो पीरियड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, एक बार आप ओके एक्सप्लेन कर। विंडो पीरियड, हाँ विंडो पीरियड दैट मीन्स समझो कि मैंने आज किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की, या फिर मुझे कहीं ना कहीं HIV का इन्फेक्शन बॉडी में आया, 4 में से कोई भी रीजन में। ज्यादातर मैं सेक्सुअल एक्टिविटी का इसलिए बोल रहा हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटी से ही इन्फेक्शन ज्यादातर स्प्रेड ऑन हो रहा है। तो वो बॉडी में आने के बाद, यानी कि मेरे अंदर वो वायरस एंटर किया, फिर वो अपना घर ढूंढेगा, कारखाना शुरू करेगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू करेगा, वो एनवायरनमेंट, वो उसकी फिजिबिलिटी, ये सबके लिए कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। यानी कि अगर मैंने आज सेक्स किया और कल मैं जाके टेस्ट करूंगा तो मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, बोलेंगे डॉक्टर क्या आप सब ठीक हो, क्योंकि मेरा जो खून टेस्टिंग के लिए लिया गया उसमें वायरस दिखा ही नहीं गया, क्योंकि उसका पॉपुलेशन ही नहीं है। इसीलिए आइडेंटिफाई नहीं होने की वजह से मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, और मैं खुश हो जाऊंगा कि मैं गया पर फिर भी मुझे HIV इन्फेक्शन नहीं लगा। बट मेरा वायरस बॉडी में है और वो कहीं ना कहीं वो एक्ट होगा
तो वो टाइम पीरियड जो है वो 3 महीने का है। तो विंडो पीरियड को 3 महीने का टाइम दिया गया है। कई बार डिपेंड कि वो HIV-2 का वायरस है तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन नहीं पता कर पाएंगे। तो 3 महीने के बाद जब हम रिपीट टेस्ट करते हैं तो वो टाइम पे हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। HIV वायरस ओके बॉडी में, हाँ HIV वायरस बॉडी में आया है कि नहीं आया है उसके लिए भी कौन से रिस्क से हम आए हैं, यानी कि अगर मैं कोई HIV पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ हॉस्पिटल में और मुझे कट लग गया और वो खून डॉक्टर का या पेशेंट के साथ कहीं टच हो गया है, कोई गलती से फ्लश हो गया फेस पे, तो ये सब एक्ट है, या फिर कोई सेक्सुअल वर्कर के पास जाके मैंने सेक्स किया है, या फिर कैजुअल नॉर्मल मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ मेरा हुआ है, तो वो सीवियरिटी भी बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि इन कंटेक्स ऑफ मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के सामने सेक्स वर्कर में HIV का वायरस सबसे ज्यादा होगा, तो कितना कंटेंट बॉडी में आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विंडो पीरियड इसको हम बोलते हैं ज्यादातर। ओके सर, ओके, जी थैंक यू। जी सर, जी सर। So another question asked by Pratima Patnaik, is it safe for people with HIV to go for COVID-19 vaccine? In fact, Yes, yes. no, I'll ask any type of vaccine. Taking any type of vaccine, is it safe for Yes, HIV yes. people? Yes. HIV is only complicated with TB treatment. When the TB treatment is initiated, doctor is stopped for a few days, we can say 10 to 15 days, because that chemical is reacted with HIV treatment, ART medicine. So that time, based on doctor, if doctor is suggested, then only it will be happen. We should be not go directly. But another every treatment or every medicine or every vaccination is suitable with HIV treatment. So there is no any issue. Jyotirmay Malik. Jyotirmay, please introduce yourself and ask your question. Please unmute. This is Jyotirmay Malik. I'm working in Red Cross as a DO. सर एक्चुअली मुझे जानना था, अगर हम HIV पॉजिटिव पेशेंट के ब्लड में कांटेक्ट में उनके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे क्या? डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट, जैसे मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ टच किया तो डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन करेगा? पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज की ऑक्सीजन के कुछ ही सेकंड में, यानी कि सेकंड का 10th पार्ट आप गिनिए कि उसमें ही वायरस अपनी आउटर बॉडी का प्रेजेंस गवा देता है। अच्छा, बॉडी के लिए क्यों हम बोलते हैं, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि जो ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर सेट करती है। फ्रिज की तरह हमें बोलना नहीं पड़ता कि अभी समर है तो हाई रखो, विंटर या रेनी सीजन है तो उसको लो में कर दो। ऐसा बॉडी में नहीं है, इसीलिए HIV वायरस ने ह्यूमन बॉडी को चुना है और उसका टेम्परेचर बहुत वेल मैनेज है, बहुत वेल मैनेज है इन कंटेक्स ऑफ अनदर क्रिएचर ऑफ यूनिवर्स। इसीलिए HIV वायरस को हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वही सूट होता है, आउटर बॉडी में वो नहीं मिल सकता। और ब्लड टू ब्लड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो ही ये हो सकता है। जैसे हम नीडल एंड सिरिंज की बात करते हैं, या फिर मदर टू चाइल्ड, बेटा बच्चा जब पैदा होता है तब की बात करते हैं, तब ब्लड कॉन्टेक्ट सीधा कॉन्टेक्ट में आता है। तो ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने होते हैं, यानी कि ग्लोव्स मास्क जो भी है वो हम ट्रीटमेंट के दौरान यूज कर सकते हैं। ये यूज करना, इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन बट इट इज अ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ओके सर, थैंक यू। Another question asked by Panchanan, is testing HIV through kit is confirmatory? I don't get what I want. Is HIV No, testing getting basically he's asking about the kits that is used for HIV testing, whether the result is confirmatory or not. Okay, so for the HIV test, there is a 3 types of tests will be done in government ICTC center. Integrated Counseling and Testing Center is everywhere in Tehsil level hospital, even though, but it's depend in state wise that where the ICTC established it. The test is very confirmed because किसी का अगर HIV रिपोर्ट देना है वो एक आम बात नहीं है। It is not just like कि भाई आपका ये है, आपका ये रिपोर्ट है।
है। इट शुड बी वेरी एंश्योर्ड, और ये बहुत रिलायबल वाला काम है जहाँ पे काउंसलर या डॉक्टर जो होते हैं ये चीज को कोई पेशेंट को हाथ में देते हैं। और ये टेस्ट रिपोर्ट ओनली पेशेंट को दिया जाता है, यानी कि मेरी जगह मेरी वाइफ या मेरे बच्चे जाएंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा, इवन दो दे आर माई फैमिली मेंबर। तो इतना कॉन्फिडेंशियल है और इतना पर्सनल इंडिविजुअल है, वो कॉमनली नहीं दिया जाता, और उसको बंद कवर में दिया जाता है ताकि वो किसी को मतलब अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है तो वो अपने आप को रोक सके। सो कंफर्मेटरी है, उसके लिए जो गवर्नमेंट के ऑथराइज ऑथेंटिकेटेड जो किट होती है वही यूज किया जाता है, वही मैंडेट और गाइडलाइन को फॉलो किए जाते हैं हर एक जगह पे यूनिवर्सली इन इंडिया। तो वो कंफर्मेटरी होता है। इन कंटेक्ट इन अगर प्राइवेट में कोई टेस्ट करवाता है फिर भी उसको गवर्नमेंट में कंपलसरी 3 किट से टेस्ट करने हैं, तीनों के रिपोर्ट पॉजिटिव आएंगे तो ही आइडेंटिफाई होगा कि HIV पॉजिटिव है। 3 में से समझो कि एक में पॉजिटिव आया, दूसरे 2 में नेगेटिव आया, तो वापस से पूरी प्रोसेस शुरू की जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मे बी टेम्परेचर की वजह से या कभी किट का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ उसकी वजह से रिजल्ट अगर फॉल्स आता है या बहुत माइनर उसमें लाइन आती है तो अगेन वो प्रोसेस शुरू की जाती है। बट डायरेक्टली किसी को ऐसा टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया जाता कि जहाँ पे थोड़ा सा भी सस्पेक्टेड हो। सो इट शुड बी वेरी कंफर्मेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट टेस्टिंग। Any other question? Yes. Yes, sir. One more. Yeah, please, definitely. Sir, during pregnancy, we know that under no circumstance mother's blood is actually flowing through the child. Then how is from mother the HIV is transmitted to the child? Because of every we can say the fluid, जो हमारे बच्चा जहाँ पे रहता है वहाँ पे जो fluid होता है वो fluid also have a contain of HIV infection। बट ट्रीटमेंट जहाँ पे मिलती है मदर को, जब ट्रीटमेंट मिलती है तो वो ट्रीटमेंट जैसे गर्भनाल जो होती है, नाल के थ्रू बच्चे को सब पोषण जाता है, तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट भी अपना इफेक्ट वहाँ तक पहुँचाती है। मतलब बच्चे के अंदर जो जीन्स बन रहे हैं, जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे वो वायरस का एंट्री वहाँ पे लॉक लगता है। सो ये ART मेडिसिन की जो मैंने बात की इसमें मैंने डीपली नहीं गया, बट देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट। कोई भी एक गोली में 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रहते हैं। पहला केमिकल जो है वो HIV वायरस को बॉडी में तो आ गया लेकिन हमारे वाइट सेल में जाने से रोकता है। यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी रहते हैं पहले चेक करते हैं, जैसे मॉल में नहीं जाते, मॉल में तो सिक्योरिटी चेक करते हैं भाई वो आयरन की भाई कोई गलत चीज लेके नहीं जा रहा है, तो सिक्योरिटी चेक करेंगे भाई नहीं तू तेरा आधार कार्ड दिखा, तू कौन है पहले दिखा, तो बोलेंगे हाँ ये तो वायरस है भाई, तुम्हारे से लॉक लगा दिया, तो वहाँ नई एंट्री बंद हो गई। दूसरा केमिकल क्या काम करता है कि व्हाइट सेल के अंदर एंटर तो हो गया वायरस, लेकिन उसको अपने आप को खोल के नया बच्चा पैदा करने वाली जो काम है वहां पे स्टॉप लगा देता है। तो दूसरा लॉक यहाँ पे लग गया। और तीसरा लॉक क्या है कि अगर उसने काम शुरू भी कर दिया लेकिन नया बच्चा वो घर में से बाहर नहीं जा पाएगा, तो वो तीसरा लॉक वहां पे लगा देते हैं। तो ये 3 लॉक की वजह से एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। यानी कि HIV इन्फेक्शन जहाँ है वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, उसकी पॉपुलेशन ना बढ़ पाएगी ना घट पाएगी, वहीं के वहीं रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी फर्टिलिटी गवा देगा और वो मल्टीप्लिकेशन का मोड से निकल जाएगा। What is the lifespan of this virus, sir, so that it will die there? तो डाई नहीं हो सकता, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ एनी मेडिसिन, बट वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट। मैं एग्जांपल एक सिंपल सा दूंगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर ऊपर इंसुलिन नहीं होगा, अगर हम टच करेंगे तो सीधा हम मर जाएंगे, करंट लग जाएगा, लेकिन उस पर कवर है तो वी कैन यूज वेरी कॉमनली, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो HIV वायरस भी इतना ही गंभीर है, इतना ही सीरियस है, बट उसके ऊपर एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी का कोट लगता है, तो उसके साथ भी हेल्दी हैप्पी एंड एकदम अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं लाइक नॉर्मल पर्सन। Sir, you told that for drug addiction, we go to OST centers, right? What is that OST center? OST center is just like a treatment center where the drug user getting the सब्सटेन, यानी कि उसके ऑप्शंस कार्ड, यानी कि किसी ने समझो कि कोई केमिकल ड्रग ले रहा है, ठीक है, MDX ले रहा है, तो वो MDX की वजह से जो आदत गिरी है वो आदत उसके लिए हार्मफुल है, यानी कि उसके बॉडी को नुकसान कर रही है। बट ये जो OST सेंटर पे जो दवाई दी जाएगी वो ऐसी दवाई रहती है जो उसके शरीर के लिए हार्मफुल भी नहीं है और वो जो ड्रग ले रहा है उसका भी सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। तो ये OST इस तरह से दी जाती है, पर सब जगह पे ये सेंटर्स नहीं होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन आइडेंटिफाई होती है वही जगह।
सॉरी, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, आई थिंक रीजनली होते हैं। जैसे कि जहाँ पे मैं पंजाब की बात करूँ तो यहाँ कपूरथला में है, दिल्ली में भी है। ज्यादातर ये प्रिजन में या जो क्लोज सेटअप है जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि जेल में कोई ड्रग यूजर गया तो उसके लिए तो ड्रग मिलना नहीं है, ड्रग वहाँ पे, तो वो ड्रग ड्रग की ऑप्शंस में क्या लेगा, नहीं लेगा तो मर ही जाएगा, उसको फिट आ जाएगी, ड्रग के जो रिवर्स इफेक्ट है वो आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उसको ओएसटी से जोड़ा जाता है। तो ज्यादातर रीजनली मेजर सिविल हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे ओएसटी सेंटर वर्क करते हैं, और ये विदाउट डॉक्टर के परमिशन के बिना कोई भी ड्रग वहाँ पे नहीं दी जाती। सब ऑथेंटिक गवर्नमेंट के ऑथराइज डॉक्टर्स ही वहाँ पे ड्रग दे सकते हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं बहुत कम टाइम में बहुत बड़े टॉपिक बोल रहा हूँ, तो आई एम वेरी वेरी प्राइमरी लेवल, बट आई 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 जस्ट रिक्वेस्ट टू प्रदीप जी कि अगर लाइक कभी भी लॉन्ग टाइम में जरूरत पड़े तो ये पूरे टॉपिक पे ना बड़े बड़े सेशन हो सकते हैं। और ड्रग यूजर्स वाली बात, I request Sathi to organize one workshop in Bhubaneswar so that we can take the lead to yeah, arrange definitely, everything and people can Sir, come. at least one more section is a must. And we Yeah. know Sathi is such a very big organization, they can know organize this workshop here. Let's move, that must be there. Yeah, definitely. Myself, I am ready for every time, but I have lots of, I have see, I have मेरे पास समुद्र है, लेकिन वहाँ पे कितना दे पाऊँ वो मेरे लिए लिमिटेशन है और कुछ नहीं. So this is the thing. So if there is, yeah, thank you, Jyoti, Jyotsna ji. If any questions is there, Pradeep ji? No, actually we have Dr. Mohammad Osama. Sir, can you please hear me? And we have also Dr. Surabhi Parihar, madam. Madam, if you can hear me, then please now put some input regarding today's presentation. Madam Surabhi Parihar, can you hear me? Okay, I think there is no more question. And Okay. indeed, we had a number of question answers and around more than 40 minutes discussion. Yeah. Thank you so much, sir, for nice presentation. We all know actually HIV is such a very it is a very big arena itself within it, and presenting HIV in a length of 1 hour and 1.5 hour is not that easy. But you presented so well and covered almost everything, what I understand, and probably all participants will also agree with me. Thank you so much to have you as our resource person for today's lecture. And definitely what you told, in future we will also try to organize at least 3-4 sessions on HIV and AIDS. Yeah. So that can give more inputs and more understanding about HIV and AIDS among the people. Thank you so much. And for your information, I am now Dr. I have already told. Dr. Surabhi is there. Okay. He's not able to connect it via audio. You can just write if any inputs is there. Dr. Surabhi, write a message there. Maybe she is not able to audio connect. But ma'am, if you can know, if you really want to ask anything, you can also text so that. प्रदीप जी, कोई भी पार्टिसिपेंट्स का कोई भी क्वेश्चंस आता है, नॉट ओनली फॉर रिगार्डिंग टुडेज सेशन बट इन कंटेक्स्ट ऑफ HIV एड्स रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी आता है, रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट रिलेटेड ऑल्सो, इवन कहीं पे कोई पेशेंट है, कुछ सपोर्ट की ट्रीटमेंट की जरूरत है, सो वी हैव अक्रॉस इंडिया नेटवर्क्स एंड कॉन्टेक्ट्स, सो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करेंगे. कोई एक पर्सन को टाइम पे ट्रीटमेंट या गाइडेंस मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी लाइफ के लिए.
है ना। तो पार्टिसिपेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी कोई भी रिक्वायरमेंट मतलब इस रिगार्डिंग हो तो आप डेफिनेटली हमारा कांटेक्ट कीजिए। हम आपको वहाँ का लिंक दे देंगे कि वहाँ पे कौन आपको ग्रासरूट लेवल पे सपोर्ट करेगा। सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन कि हमारे एरिया में हम काम कर सके। इट इज ऑल्सो सोशल वर्क। Yeah. So या Thank you, sir. thank you so much, and definitely we'll try to connect with each other and try to do as much as possible as a social worker. Sure. Thank you. Good night and Good night. Shubharatri. Thank you all of you. Sir, namaskar. Namaskar, Punasri. So should I leave? Thank you. Yeah, thank you, sir. And you can share the edited PPT. I can see you see in this PPT it is around 28 slides. Yes, but earlier one is only 22. I had edited. This one you can share and you can share with the participants. Yeah, I had edited after one expert opinion, so I had changed it. So okay. So it is again nice to meet all of you. Thank you so much. Best of luck all of you for next Same whichever. here, sir. Same here. Or always be a social worker. Never expect a table and chair and full furnished cabin. Go with the community. Go for the community. Go with the community. So God will bless you. And यहाँ पे अर्निंग नहीं है, अर्निंग ऑफ मनी नहीं है, बट अर्निंग ऑफ ब्लेसिंग है, जो हमारी ये लाइफ के लिए और आने वाली सभी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो एज ए सोशल वर्कर हमेशा एक्टिव रहिए, लोगों की दुआएं कमाएं। पैसे तो आने वाले भगवान सब देंगे, लेकिन दो लोगों की दुआएं कमाएंगे तो बहुत बड़ा सोशल वर्क है ना। जहाँ तक सर मुझे पता चला आप तो पूरा दुआ कमा चुके हैं गुजरात में। नहीं, ये सही है। सेंसिटिविटी लाए हैं, लोगों की दुआएं कमाए हैं। Every no corner of Gujarat, no only person is Dharmendra Patel. Definitely. So this is a blessing from God, and definitely अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ऊपर वाला सब देखेगा। जब बोले ना कुछ नहीं था तो ऊपर वाला ही देता है, तो देंगे वो भी। टेंशन नहीं लेना है। Okay, so nice to meet all of you. Thank you so much, and I hope so very soon we'll be meet again. And I would like to interact with all of you. Okay. Thank you, Pradeep ji. Thank you, all of you. Thank you, all of you, and definitely the management and committee members, everyone. Thank you so much. And students are also thank you. आपने आपके स्टडी में से टाइम निकाल के इसमें सेशन में पार्टिसिपेट किया. So